is also a member of the website and newsletter committee of ICAI Ahmedabad for the financial year 1920, 2021 and 21-22. Is a core member of the RERA study group of WRC of ICAI for the year 2020-21. If we see his achievements, then he have been regularly delivering the lecture at ICAI Ahmedabad, ICSI Ahmedabad, ICAI Bengaluru, drafting course of ICAI CPE study circle and other forums. He is a co-author of a book, e-filing guide on the Form 3 and Form 5 under RERA, published by ICAI Ahmedabad. He have been appointed as an observer by the Honorable NCLT Ahmedabad in the shareholder creditor meeting in merger and acquisition liquidation matter. He have been writing regularly for web media like Taxman, TaxGuru, ICAI Ahmedabad newsletter, WRC newsletter, and written more than 50 articles written on the RERA. With this, welcome sir at our Gandhinagar CPE study circle. Now I would like to request Romil bhai Shah to carry on further. I think Romil bhai, you are moved. Kindly unmute Thank you, Darshit. Now I hand over online platform to today's faculty CA Madhav Vilasa for the start of seminar. Good evening, friends. Thank you once again, Gandhinagar CPE Study Circle members, for inviting me to share my view. I think this is the third time I have been invited, virtual and physical mode. First, I came for RERA, then RTI, and now again for the RERA. Thank you, Chawda ji. Thank you, Chintan bhai. Thank you, every member. And I think it is my, it is great things for me also that अगर एक बार किसी जगह पे लेक्चर देने गए और दूसरी बार अगर बुला लिया है, इसका मतलब पहली बार आपने सही लेक्चर दिया है या सही समझा है, इसीलिए बुलाया है. तो ये मुझे खुशी है कि अगर मैं थर्ड टाइम आ चुका हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेंबर सेटिस्फाइड हैं, इसीलिए बुलाया गया है. सो अगेन वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर इनवाइटिंग मी. तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा आई थिंक पार्टिसिपेंट्स आर वेरी लेस एंड आई थिंक एवरीबडी मस्ट बी डूइंग ए प्रैक्टिस इन RERA. कोई नहीं कर रहा है, थोड़ा या तो रेज हैंड करिए या अनम्यूट करके बताइए. तो क्या आज का सेशन उसी एंगल से थोड़ा कैरी करेंगे? There are few people, sir. Few members are there. There are few members and there are few members are not doing practice in RERA, correct? तो थोड़ा बेसिक कवर कर लेते हैं, राइट? और थोड़ा, और अगर मेरे प्रीवियस सेशन का अगर किसी को मेमोराइज है तो मैं वो बेसिक को भी स्किप करके सीधा फॉर्म 5 जो कि एनुअल कंप्लायंस है उस पे आ जाता हूँ. और अगर किसी को लगता नहीं मुझे वो वापस बेसिक भी कवर करना चाहिए तो मैं उसी अकॉर्डिंग जाता हूँ. जैसा आप लोग सजेस्ट करेंगे मैं उसी हिसाब से जाऊंगा. आप लोग कैसा चाहते हैं? बोलिए चिंतन जी. नहीं बराबर है चावड़ा जी. हम तो साहब आपको जो सही लगे, क्योंकि यू प्रोफेशनल लाइक सस इन डे इन डे आउट, so accordingly whatever you feel okay sir, you can proceed. And form 5 is the very important thing. That is the most important things at this juncture, but you are aware of the issues and the need of the professionals, so accordingly you can modify the thing. नहीं सर, देखो किसी को अगर बेसिक समझना है तो मैं कुछ पॉइंट बेसिक के ले लूं. हाँ बेसिक्स के लीजिए ना सर. पॉइंट बेसिक्स के नहीं बेसिक्स के अभी लीजिए ना. देयर वुड बी few members who may not be doing practice in this area, so even they can have understanding of the basics and how to do the basic compliances and all that. So that could be helpful. Chintan bhai, that some members should not feel, they should not get bored. अरे यार मैंने yes. Why should I listen? So I don't want that thing also. So first I will add some basic, then I will go on a annual compliance form 5, correct? Got that sir. Perfect. अपडेट आया, मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा, करेक्ट? परफेक्ट सर. आप थोड़ा ये स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करिए. हाँ रोमिल भाई, स्क्रीन शेयरिंग अलाउ नहीं करेलू साहब? जस्ट બાકી છે કરી નાખો તો. એટલે મને ગૂગલ આમાં મીટિંગ માં ઝૂમ માં કઈ રીતે કરીએ છે સ્ક્રીન શેરિંગ વાળું? અરે યાર એમાં ખાલી ઓલામાં તમારે અલાઉ કરવાનું હોય છે. સ્ક્રીન શેર કરશો ને, સ્ક્રીન શેર નું જે વચ્ચેનું બટન છે એના પર ખાલી તમારે અલાઉ કરવાનું છે. આપણે કરેલી જ છે ને દર વખતે. તો યાર ચાવડા સાહેબ તમે કરી દેશો? તો મારાથી થશે ને ભાઈ. હોસ્ટ છે રોમિલ ભાઈ છે.
ચિંતનભાઈ મ્યુટ છો, મ્યુટ. તમે મ્યુટ છો કદાચ. તમે મ્યુટ છો કદાચ. I think Nipunji has also joined Chawda ji and Chintan bhai. So निपुंजी का शायद अभी एक नेक्स्ट लेक्चर है, तो निपुंजी थोड़ा आपको रेरा का एंड अदर लॉ से रिलेटेड कुछ मेंबर्स को हाइलाइट्स कर सकते हैं पॉइंट्स जो कि जनरल रियल एस्टेट डेवलपर और अपने प्रोफेशनल को ध्यान में रखने चाहिए. तो आई थिंक बिफोर आई स्टार्ट, I think Nipunji will give you 10-15 minutes. I think then after his session. So Nipunji, I think everybody was looking for you, but I told them बहुत सर. हाँ, so everybody was looking for you कि भाई निपुंजी होते, तो मैंने बोला थोड़ा उनका शेड्यूल क्लैश हुआ है, but I think you are there, so first you can give some highlights. कृष्णा और अर्जुन की सर जोड़ी होती है ना सर. थैंक यू सर, थैंक यू महादेव जी, थैंक यू चिंतन भाई, थैंक यू चावड़ा जी. बस कैसे सर? बस एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया. एक्चुअली आज थोड़ा सा एक दूसरा भी कॉन्फ्रेंस क्लैश हो गया और मुझे उन्होंने वो कोऑर्डिनेटर स्पीकर बना दिया है उसके लिए. उसमें एनसीएलटी के जज साहब भी आ रहे हैं चीफ गेस्ट, तो इस कारण से थोड़ा क्लैशिंग हो गया. Yeah. बस नाइस टू सी यू सर. Nipunji, I think Nipunji, you can highlight some issues in real estate sector and what other laws can be helpful for the real estate developers in short, according to your time. Then I will cover the basic and related to annual compliance. Sure, so and you can share screen share is also enabled, sir. Okay. So Nipunji, I think you can give some initial time. Done. So should we start or we are waiting? No, we can start. I was supposed to start and you joined, so I think it is a good for members also, because they want to hear from you more than me. So anyway, start please. In fact, RERA में तो we always listen to Mahadev ji, क्योंकि Mahadev ji is the best in RERA. Yes. I will just try to throw some light on कि दूसरे laws का interplay कैसा है, and how with RERA we can get more remedies, or we can actually, if we are taking a wrong remedy, we can come to RERA or maybe go to other law. So broadly speaking, RERA के आने के बाद we have got a specific law. So basically RERA law में we will normally get, suppose delayed है, possession is not given on time by the builder, we can get compensation, we can get interest on the amount which is paid to him. We can also ask for refund of the complete amount and do not take the property if it is getting delayed. So ये सारे provision RERA के महादेव जी डिटेल में डिस्कस करेंगे. पर कुछ issues ऐसे हैं जहाँ पे RERA और दूसरे लॉ का कॉन्फ्लिक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डाली है फॉर दी कॉम्पनसेशन कि मुझे टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, मुझे टाइम पे फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला है, सो दैट इज द रीजन कि मुझे कॉम्पनसेशन मिले, या मैंने पोजीशन डिलेड ले लिया है और अब मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए कि इतना डिले का मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए. तो कंज्यूमर कोर्ट और रेरा क्या पैरेलली चल सकता है? सो आई वुड लाइक टू आस्क ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि व्हाट डू दे थिंक, क्या हम दोनों में पैरेलली जा सकते हैं या फिर हम लोग रेरा में चले गए तो खत्म हो गया बात. Yes, participants, anybody can give their views. Sir, can you repeat the question, sir? Yes, my question is, suppose किसी को प्रॉपर्टी का पोजीशन लेट मिला है, लेट से मुझे 2020 में मिलना चाहिए था, मुझे 2022 में मिला है. So now there is a delay of let's say 2 years. We can definitely go to RERA and ask for compensation कि मुझे इतना डिले हुआ है, और डिले के ऊपर I can get interest, I can get compensation, वो महादेव जी ऑलरेडी डिस्कस करेंगे. बट क्या मैं कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता हूँ, क्या मैं कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ, या सपोज मैंने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी है तो भी मैं रेरा में जा सकता हूँ? दोनों, if I can go parallelly in both the court, or if I go to one court, my right to go before other court goes away. I think both should be allowed, sir. Both should be allowed. Anybody who says कि only one should be allowed? कोई पार्टिसिपेंट्स का ऐसा व्यू है कि एक ही अलाउ होना चाहिए? नहीं.
ओके, तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है जनरल लॉ स्पेशल लॉ का। तो कंज्यूमर तो एक जनरल लॉ है, रेरा एक स्पेशल लॉ है, तो क्या स्पेशल लॉ को जनरल लॉ पे ओवरराइड नहीं करना चाहिए? व्हाट इज योर व्यू सर? स्पेशल लॉ को ओवरराइड करना चाहिए? Special provisions are always superseding the general provisions. करेक्ट। तो एक स्पेशल लॉ आ गया है रियल एस्टेट के लिए जो कंज्यूमर्स के लिए बोल रहा है, जो आपको कॉम्पनसेशन भी दिला रहा है। इवन देन क्या मैं कंज्यूमर में जा सकता हूँ, या मैं कंज्यूमर में चला गया हूँ सपोज, और कंज्यूमर में एज वी नो कि साल में 4 बार मैटर ही लगता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया कंज्यूमर कोर्ट्स को कि आप एडजॉर्नमेंट ही 3 महीने का दे रहे हो, तो 4-5 बार से ज्यादा मैटर लगता नहीं है। फिर जब तक मैटर हियरिंग पे आता है तब तक जज की ट्रांसफर हो जाती है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कंज्यूमर कोर्ट का कोई बहुत ज्यादा एफिशिएंट रिजल्ट नहीं है। तो क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर हमको कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए, और क्या लॉ ये परमिट करेगा कि हम कंज्यूमर में चले गए तो रेरा में चले? तो इसका आंसर रेरा के सेक्शन 71 में है। महादेव जी आप भी हैं ऑनलाइन, मुझे दिख नहीं रहे। तो सेक्शन 71 में कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप 4 सेक्शन के अंदर रेरा में जाना चाहते हैं तो आपको कंज्यूमर कोर्ट से अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना पड़ेगा और रेरा में कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी। सो वो 4 सेक्शन की लिमिटेशन है 12, 14, 18 एंड 19, राइट महादेव जी? यस यस। So all those 4 सेक्शन वो आपको महादेव जी डिस्कस करेंगे कि हाउ दे आर इम्पोर्टेंट। अगर वो 4 सेक्शन में अपने कंप्लेन कर सकते हैं रेरा में, तो आवर सजेशन इज कि यू गो टू रेरा एंड विड्रॉ फ्रॉम कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर फाइल भी कर दिया है तो। हाउएवर द सेकंड आंसर इज करेक्ट कि कंज्यूमर और रेरा कैन को एग्जिस्ट एंड कैन गो अवे पैरेलली। देयर इज नो प्रोहिबिशन एक्सेप्ट दीज 4 सेक्शन। तो अगर ये चारों सेक्शन के अंदर आपका जुरिसडिक्शन रेरा का आपने चूज कर लिया है, तो other than these 4, you can definitely go to consumer also. Like for example, unfair trade practice. Unfair trade practice को आप consumer में लेके जा सकते हैं। रेरा में specifically consumer नहीं जा सकता for unfair trade practice। 12, 14, 18, 19 क्या बोलता है? Advertisement और आपको जो दिया गया है फैसिलिटी उसमें फॉल्स है, अगर डिले पोजीशन है, अगर रिफंड लिया है, अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, स्पेसिफिक प्रोविजंस रेरा में है। बट अगर कोई चीज स्पेसिफिक से कवर नहीं है तो आप कंज्यूमर में भी उसको पैरेलली डाल सकते हैं, कोई प्रोहिबिशन नहीं है। सो दैट इज वन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रेरा एंड कंज्यूमर कि उसको हार्मोनियसली इंटरप्रेट करना है। देन दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आजकल आ रहा है और दैट इज मच इन वोग, दैट इज अगर हमने कोई एग्रीमेंट सपोज बिल्डर के साथ पहले से कर लिया था और एग्रीमेंट में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज था। अब आर्बिट्रेशन ऐसा बोलता है कि अगर कभी भी 2 पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वी कैन गो एंड अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर एंड ही विल डिसाइड द डिस्प्यूट, ही विल डिसाइड व्हाट इज टू बी पेड, व्हाट इज नॉट टू बी पेड। तो ये जो आर्बिट्रेशन है, वेदर इट विल ओवरराइड रेरा और रेरा विल ओवरराइड आर्बिट्रेशन। सो दिस इज द न्यू इवॉल्विंग आई वुड से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ which will prevail. There is no clear cut answer as of now. अभी भी there is no settled position of law, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक से लोन लिया है तो क्या होता है कि नॉर्मली जो NBFCs है, इट इज मोर पॉपुलर इन NBFCs कि वो लोग आर्बिट्रेशन का क्लॉज डालते हैं। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट तो आर्बिट्रेशन में मैटर चला जाता है। पैरेलली वो DRT के अंदर भी केस फाइल कर देते हैं। सो वो DRT और आर्बिट्रेशन पैरेलली चलाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी एलन बुश के केस में अपहेल्ड किया है कि दे बोथ कैन गो पैरेलली। लेकिन ऐसा सिमिलर रूलिंग अभी तक रेरा वर्सेस आर्बिट्रेशन पे नहीं है। सो इट इज डिफिकल्ट टू से कि कोर्ट इसमें क्या व्यू लेगा। इसमें क्या इश्यू आ सकता है? इश्यू ये है कि रेरा के अंदर 2 सेक्शन है जो महादेव जी डिस्कस करेंगे, सेक्शन 88 और 89। 88 बोलता है, क्रक्स ये है, 88 बोलता है कि इट इज ऑल अदर लॉज वुड बी एप्लीकेबल, बट अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो रेरा वुड प्रीवेल अगर सब्सिक्वेंट लॉ है तो। दूसरा, रेरा हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन अदर लॉज। सो इन दोनों सेक्शंस के अंदर कंफ्यूजन ये है कि दूसरे लॉज को भी वो हार्मोनियसली इंटरप्रेट करने के लिए बोलता है और एक तरफ बोलता है कि रेरा ओवरराइड करेगा। तो सारा कंफ्यूजन इन 2 सेक्शन से आ रहा है कि क्या आर्बिट्रेशन जो कि एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म है वो एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं। सो एज ऑफ नाउ इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक जजमेंट नहीं है, लेकिन
there are two judgments. One is of RERA Authority Mumbai, जहाँ पे ऐसा डिसाइड किया है कि अगर रेरा के पहले कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज है, तो आर्बिट्रेशन में पार्टीज जा सकती है और रेरा अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था आपने ओपन आइज से ये एक्सेप्ट किया कि आई विल गो टू आर्बिट्रेशन. सो दैट इज वन ऑफ द जजमेंट ऑफ रेरा अथॉरिटी. स्टिल इट इज टू बी टेस्टेड इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की फाइनल आउटकम क्या होगा, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द व्यू की प्री रेरा कॉन्ट्रैक्ट है और आर्बिट्रेशन का क्लॉज है, तो इट कैन डेफिनेटली गो फॉर आर्बिट्रेशन. My personal view is arbitration is always better and cost effective. If you talk about both the parties, they might settle speedily. Probably हो सकता है रेरा में we have रेरा appellate tribunal, then we have high court, then we have supreme court. So अगर हम एक जगह contest करेंगे तो शायद दूसरी पार्टी फिर कहीं और contest करे. So it's a long drawn process. But अगर आपको ऐसा लगता है कि the other side is not going to settle easily in arbitration, then definitely you can go and choose RERA. क्योंकि argument दोनों side हो सकते हैं, for and against RERA, both is possible. So as of now, RERA versus arbitration, still it is not clear which will override what, but both can coexist. That is my view. Third is RERA versus insolvency. बहुत सारे insolvent real estate builders and developers हैं जिनके पास पैसा नहीं है, कंपनी डिफॉल्ट कर गई है. अभी how do they treat the aggrieved party, that is the home buyer or maybe the shop buyer, because commercial property भी है या real estate residential property भी है, दोनों ही covered है. So insolvency will prevail over RERA, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है. पाइनियर अर्बन का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, wherein they say कि insolvency law is a special law, it is a code and it has an overriding effect over RERA Act. तो ये क्लियर है कि RERA will never override the IBC. So in case company is going to be an insolvent, we have to be very sure कि हमको IBC के provisions में protected रहना है. So my advice as far as IBC and RERA is concerned, if you are an investor or a customer of a real estate company, please get a sale deed done in your favor so that आपके पास security रहे. Even under insolvency, you do not become unsecured creditor. So that is my suggestion. In case there is a conflict between IBC and RERA, to protect ourselves, it is better to get a sale deed executed. Whereas in RERA, even without sale deed, we are protected. Only agreement to sell, also we have all the rights of allotee. So इतना issue RERA में नहीं है. But अगर हमको लगता है कि financially builder या developer की problem है, so then it is always advisable to get a sale deed done. So these were my broad outlay of what can happen between two laws, just crystal glazing कि हम क्या हो सकता है probabilities के ऊपर जा रहे थे. So I think now you sir, can. I think you can give, if you have a 2, 5 or 7 minutes, you can throw the highlights on this ASCII advertisement also, and I think that recent Ajay Devgan case law is also there. So that would be more interested for the participants. ASCII relevant to RERA. Okay. So I will show some of the advertisements. Just Yeah, because you know members must not be aware about that. So either they can guide their client also, and they can have some few source of income also in that. That is, you are talking about recently. I read in Gujarati newspaper that 5 lakh rupee penalty imposed for not mentioning the RERA number. No, I'm not talking about that. I'm talking Okay. about something different. So that Okay. in RERA we see the advertisement, and there is a provision for the advertisement. Section 11, subsection 2, section Yes. 12 talk about the advertisement, right? Okay. Veracity of the advertisement. Now there is another ample opportunity as far as this ASCII concerned, that how that ASCII can be utilized for we can guide our client who is a developer, and it can be in general way how it can be used. So very interesting thing is that. Okay. so basically this is something which is not related to RERA, but it is important in real estate also. There is an authority called Advertisement Standard Council of India. Just like we have a regulator, let's say ICAI, SEBI, RBI. So there is a regulator called Advertisement and Standard, ASCI, based out of Mumbai. What does this Advertisement Standard Council does is, they have laid down some guidelines.
In that guideline, they say, even if the advertisement is false or misleading, you can file a complaint. Now, what is false, what is misleading? So very interestingly, if I do not speak the truth, that does not mean I speak the truthful thing. If I don't lie, that does not mean I always speak truth. I can conceal some facts also. मैं झूठ नहीं बोलता इसका मतलब ये नहीं मैं सच बोलता हूँ, मैं सच छुपा भी सकता हूँ. That is what broad outline is. So false and misleading advertisement में there are some things which are very important, that their representation in the advertisement should be true and correct. For example, if you remember some years back, because of that Maggie issue, Amitabh Bachchan, Preeti Zinta, Madhuri Dixit, there was case filed against all of them because they were brand ambassador for a goods which was not correct. So declaration in advertisement is also very important. It cannot be false or misleading. So I am giving you some examples how it misleads the ad. If you remember this Baba Ramdev ad of toothpaste, he said, "Aap zehar se manjan kar rahe ho." It was banned by ASCI. So Advertisement Standard Council of India has the power to even ban an advertisement which is being there on electronic media. So if there is something wrong in the product being sold, now similarly in real estate, you can see this particular ad. You can just read this ad. This ad says that Twinkle Khanna is saying she has actually designed this particular project. Now, when this project was not completed and some complaints were filed, it came to the picture that they were making Twinkle Khanna also as a party. It was revealed that she is not even an architect. She cannot do a design. Only for advertisement purpose, they wrote this particular thing. So this is misleading advertisement, and she was penalized. You can read. I will be sharing this PPT. Another example is of Mahendra Singh Dhoni. You can read this particular ad that Mahendra Singh Dhoni was endorsing Amrapali, and you all know what happened to Amrapali. All the promoters are now in jail. So FIR was also lodged, consumer cases were also filed, and Advertisement Standard Council of India was also there to regulate this particular thing. You cannot make wrong endorsement. So this is Gautam Gambhir case, similar case. So in this case, you are not an LOT. Even if there is a false advertisement, you can file the complaint. Just like Madhevji will explain, advertisement under RERA Act, section 11 and 12 is there. There the RERA guideline is very limited. Website should be there, registered number should be there. But here in this case, even if it is wrongly saying something, that can be done. In this case also, Sushmita Sen was made a party, again a real estate project where she was endorsing, and then it could not get completed and given time. Sir, mute हो गए आप. Yes, sir, just a minute. So this is again Loda's ad. In Loda ad, you can see what they are saying. World standard air quality. COVID आया तो they came out with an ad कि हमारी air quality market से better है. Godrej का ad है 10 times enhanced air quality because air quality खराब हो गई थी, lungs were getting destroyed in COVID. So all those started playing on the air quality. When Advertisement of Standard Council of India examined, they found that there is no difference in the air quality. They don't have any special equipments to get a better quality, and therefore they found these ads to be ambiguous, misleading, false. So in सब पे penalty लगी है, and you can read all these judgments I have said. Another form of misleading ad, 5 kilometers from school, 5 kilometers, let's say from temple, from railway station. But कैसे? In car 5 kilometers, in cycle 5 kilometers, by air 5 kilometers, again misleading. So if such ads are misleading, you can definitely file a complaint in Advertisement Standard Council of India, even if you are not an LOT, and compensation will be given to you. You can also demand compensation under Consumer Protection Act. It is not available under RERA law, but available in these acts. Yeah, Hyderabad most trusted real estate, Pune's most trusted brand. So these all things were challenged, penalized, and some ads were removed also from the media. So this was only what I wanted to share with you all.
So the ultimately crux what Nipunji wanted to say that if we are doing any developer is doing an advertisement and somebody is endorsing that, right? Apart from the RERA, we have remedies against the in the ASCII also. So before that forum also we can file a complaint, and we should advise our client that such type of things should not happen. Like he has given the example of the Twinkle Khanda. Even she is not an architect, but it is made that the project is designed by her. So something like that we can avoid and we can suggest to our clients, and that is the opportunity for a professionals also. That and recently I think in one of the Ajay Devgan matter also, what advertisement was there in a picture, in a photo advertisement, which was not shown into the picture, and the complaint was filed against the Ajay Devgan. So something like, you know, advertisement for the real estate developer can also be applicable. So I think thank you Nipunji, and आप आए तो थोड़ा members को other चीजों का कुछ input मिला. ये this was the ad. This is the ad. ये दे प्यार दे का ad था. इसके अंदर अजय देवगन is having 2 legs or 2 different cars. So it was challenge कि ये जो stunt है, it was not there in the movie. So इसके ऊपर they have filed a consumer complaint. और ऐसा similar complaint already file हो चुका है शाहरुख खान पे फैन मूवी में, एंड उस पर कॉस्ट भी इम्पोज हो चुकी है यशराज फिल्म प्रोडक्शन में. तो सिमिलरली अजय देवगन वाला ये मैटर भी हम लोगों की फर्म कर रही है. सो वेरी इंटरेस्टिंगली इवन मिसलीडिंग एड्स लाइक दिस दे कैन आल्सो बी पेनलाइज्ड. सो महादेव जी, आई विल रिक्वेस्ट यू नाउ परमिशन टू लीव. या थैंक यू. कॉन्फ्रेंस. Thank you, sir. थैंक यू चावड़ा जी. Thank you, sir. Thank you, Nipun, sir. Thank you. Thank you. Thank you. So friends, now I think I will take some basic of the RERA, and then after I will move to directly annual compliances. And we know everyone that what is the purpose of the RERA. So basic purpose of the RERA was that before the RERA there was no transparency, diversion of the money, project was not completed on time. Lot of problems were there, delay in possession, all these problems were there before the RERA. So to sort out these problems, the RERA came into the force. So there are 4 main objects of the RERA is that to regulation of the real estate sector, to maintain the transparency in the real estate sector, for a protection of the consumer in a real estate sector, and the functional authority, mean like real estate regulatory authority and establishment of the real estate appellate tribunal. ये बना के रेरा में जो भी प्रॉब्लम्स है दैट कैन बी सॉर्टेड आउट. सो these are the main object of the रेरा. अगर हम रेरा को समझने की कोशिश करें तो अल्टीमेटली दिस इज अ वेरी शॉर्ट एक्ट. देयर आर a total 10 chapters in the act. 92 sections are there, 42 definitions are there. So this is Real Estate Regulation and Development Act 2016. It is a central act, and every state has their own rules and their regulations. So the state authority has power to frame the rules and regulation. So in Gujarat, Maharashtra, UP, Haryana, Delhi, Rajasthan, everywhere there are rules which is notified by the state government and which is in line with the central act. If we talk about the Gujarat RERA, again there are 5 rules are notified. Regulation 6 number of regulations are notified. 32 circulars are issued so far. 67 orders are issued so far. Guidance are issued for number of, and standard operating procedures are issued. So these are the procedures which talks about how to register, how to file quarterly return, annual return, alteration, and everything is there. So these are the points in reference to the Gujarat RERA. अगर हम रेरा को समझने की कोशिश करें तो रेरा को 3 तरीके से समझा जा सकता है in a simple language. That there are 3 B's of the RERA: builder, buyer and broker. हमको अगर रेरा को समझना है तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है रेरा में, इनको समझ के हम ध्यान में रख सकते हैं. फिर हम अगर बिल्डर्स की बात करें तो बिल्डर के केस में रेरा को कैसे समझना है, बायर्स के केस में कैसे समझना है, और ब्रोकर्स के केस में. सो सबसे पहले बिल्डर के केस में आता है रजिस्ट्रेशन. कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर हो जिसका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ 8 यूनिट्स, मोर देन 8 यूनिट्स आर देयर और एरिया इज मोर देन 500 स्क्वायर मीटर, उस केस में उस रियल एस्टेट डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराना होता है. इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि रेरा में रजिस्ट्रेशन जो होता है वो रियल एस्टेट डेवलपर का नहीं होता, प्रोजेक्ट का होता है.
So if the promoter in a one single company having a multiple projects, so there would be a separate registration for the each project. Now I think again in RERA 2.0 that first we have to register as a developer, then after in that profile we will have a registration for the separate project, but ultimately the registration is for the real estate project only, not for the promoter. Now once the project is registered, registration number is granted by the RERA authority, project is approved, then we will have a compliance part. Compliance part में क्या रहता है, quarterly return update करने पड़ते हैं, annually return file करना पड़ता है. Quarterly return which is as per the section 11 subsection 1 is there. जो भी क्वार्टरली बुकिंग्स है वो हमको अपडेट करनी पड़ती है, क्या प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस स्टेटस है, कितना पैसा खर्च हुआ है. फॉर्म 3, फॉर्म 1, 2, 3 these certificate generally we submit at the time of annual return. Apart from that, if any compliance is right, any approvals is received from the authority, any authority, तो वो भी हम रेरा में क्वार्टरली रिटर्न के टाइम सबमिट करते हैं. देन आफ्टर टॉक्स अबाउट द ड्यूटीज, तो प्रमोटर की क्या क्या ड्यूटीज है सेक्शन 11 में दिया गया है, किस प्रकार की क्या क्या ड्यूटीज है प्रोजेक्ट मेंटेनेंस को लेकर, सोसाइटी बनाने को लेकर, सारे ऑब्लिगेशन फुलफिल करने को लेकर. एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद आप प्रोजेक्ट पे कोई यूनिट मॉर्गेज नहीं कर सकते जो यूनिट ऑलरेडी आपने बुक कर ली है, राइट. टाइटल क्लियरेंस का है. Then after you have to deposit 70% amount in a designated RERA bank account. So these are the annual compliance, these are the duties, quarterly and annually duties are there which developer has to do. Then after if talk about the right, तो promoter के क्या right है, rights में अगर हम बात करें तो उसका rights है कि वो customer उनको पेमेंट टाइम पे दे. अगर डिले पेमेंट है तो इंटरेस्ट लेने का राइट है. कस्टमर से वो ये कॉर्पोरेशन एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन जो बनाना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें वो पार्टिसिपेट करे. सो दीज आर द सम राइट्स इज आल्सो अवेलेबल टू द रियल एस्टेट डेवलपर, नॉट ओनली बिकॉज दिस सेक्टर इज फॉर द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट. मतलब रेगुलेशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि डेवलपर्स के कोई राइट्स नहीं है. डेवलपर्स हैज आल्सो गिवन सम राइट्स अंडर द रेरा. अगर हम बायर्स की बात करने जाए तो बायर्स की बात करें तो प्री बुकिंग के समय हमारे को क्या ध्यान में रखना पड़ता है जब हम प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं. प्लान अप्रूव्ड है नहीं है, अथॉरिटी से अप्रूवल मिला है नहीं है, रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है. देन आफ्टर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमको मिले, हम बुकिंग के सारे प्लान्स चेक करें. ये सारी चीजें हम प्री बुकिंग से पहले ध्यान में रख सकते हैं. पोस्ट बुकिंग के बाद हमारे को ये देखना चाहिए अलॉटमेंट लेटर मिला नहीं मिला है, पेमेंट किया है तो उसकी रिसीट मिली नहीं मिली है, राइट. एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट किया नहीं किया है, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस स्टेटस क्या क्या है, उसका टाइम शेड्यूल क्या है. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच अ बायर शुड कीप इनटू द माइंड आफ्टर द पोस्ट बुकिंग ऑफ द एनी यूनिट इनटू द प्रोजेक्ट. एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स इज द पोजीशन. जो उनको पोजीशन है वो सेक्शन 17 के हिसाब से मिला नहीं मिला. कॉमन एसोसिएशन का जो पोजीशन है, कॉमन अम्यूनिटीज है, वो एसोसिएशन ऑफ अलॉटी को हैंडओवर की गई है नहीं की गई है. सो दीज थिंग्स कम फॉर द टाइम ऑफ पोजीशन, राइट. सेल डीड, पूरा जो प्रोजेक्ट का जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसकी एक फाइल उसको दी गई है नहीं दी गई है. सो दीज टाइप ऑफ द थिंग्स आर देयर व्हिच रियल एस्टेट एन एजेंट कस्टमर कैन कीप इनटू द माइंड आफ्टर द एट द टाइम ऑफ पोजीशन. अगर हम रियल एस्टेट एजेंट की बात करें जो कि ब्रोकर है, सो उनको रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट है. अगर वो ऐसे प्रोजेक्ट में यूनिट सेल कर रहे हैं या फैसिलिटेट कर रहे हैं जो कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट अगर रेरा में रजिस्टर्ड है और कोई रियल एस्टेट एजेंट उस ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड डील करते हैं, तो उनको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट जो ओल्ड यूनिट्स जो कि प्रोजेक्ट विच आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द रेरा, अगर वो उसमें डील करते हैं तो उन रियल एस्टेट एजेंट को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है. हम ड्यूटीज की बात करते हैं तो रियल एस्टेट एजेंट की क्या ड्यूटीज होती है. ड्यूटीज होती है उनको रिटर्न भरना पड़ता है. पहले हाफ ईयरली रिटर्न था, अभी ईयरली रिटर्न हो गया है, राइट. बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का. हम एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात भूल जाते हैं जब भी किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू अगर कोई डील होती है. सो समटाइम वी सी दैट आइदर डेवलपर्स पे इन कैश or we pay in case to the real estate agent whatever his professional fees is there. In that case we should see that whether what would be the consequences. अगर हम उनको दे रहे हैं तो क्या इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या हम रियल एस्टेट एजेंट को किसी प्रकार से रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं या नहीं ठहरा सकते हैं. सो इन दैट केस वी शुड सी कि वो जो रियल एस्टेट एजेंट है
उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमारे एग्रीमेंट टू सेल में होना चाहिए। ये बहुत सारी जगह देखा जाता है कि जब हम किसी एजेंट के थ्रू अगर कोई सेल फैसिलिटेट होती है तो वो उसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखते हैं। सो दैट्स थिंग वी शुड कीप इनटू द माइंड। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। आई थिंक आई विल नॉट गो फॉर द डेफिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, मैं शॉर्ट में खत्म करूंगा। अगर हम अलोटी की बात करते हैं तो अलोटी में फर्स्ट बायर और सेकंड बायर दोनों काउंट हो जाते हैं। फर्स्ट बायर का मतलब है कि आज मैंने जो यूनिट खरीदा है, अगर मैं कल चिंतन जी को सेल कर देता हूं तो चिंतन जी विल ऑल्सो बिकम अलोटी। अब चिंतन जी अलोटी बन गए, लेकिन अलोटी बनने का फायदा क्या हुआ, तो वो बात जाती है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट पे। 5 ईयर के अंदर जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का अगर जो क्लोज है वो अगर कंपनसेशन है, ये चिंतन जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर वो एजेंट वाला आपने बताया तो उसमें सर फिर मैच होना चाहिए, मतलब लेट अस से आई एम एन एजेंट एंड एक्स इज अ डेवलपर, सो आई वुड बी माय डेटा दैट आई हैव सोल्ड दिस 5 फ्लैट इन दिस स्कीम टू ABCD, सो वेदर दैट डेटा शुड मैच विद दैट डेवलपर का जो डेटा अपलोड हुआ होगा उसके साथ। तो डेटा डेवलपर तो लिखता नहीं एजेंट का नाम। अच्छा, ओके। आप तो देखिए फॉर्म 3 में कहाँ एजेंट का इंफॉर्मेशन नहीं आता। हाँ, यू आर राइट सर। तो उसमें फिर उसका ऐसा कुछ डालने का नहीं है, मतलब अगर एजेंट वॉलंटरीली नहीं दिखाता है, सो देयर इज नो कैच लाइक दैट कि वेरी ही कैन बी गेट कॉट अप कि भाई मैंने ये सेल किया है नहीं किया है, ऐसा। देयर इज नो कैच, ओके ओके। देयर इज नो डायरेक्ट कैच। बट इसमें ज्यादातर मतलब जो लो मतलब to the clients and who are real estate developer agents like whom we deal with, तो वो लोग तो मतलब जनरली ऐसे नील ऐसे ही कर देते हैं, मतलब हर बार कि मैंने कुछ नहीं हुआ, दो दे आर अर्निंग लाइक हैंडसम अमाउंट बाय दिस इवन इन चेक आल्सो, बट देन आई एम नॉट श्योर लाइक व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस। और वो उनको ऐसा लगता है कि मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, मैं क्यों कंप्लायंस में ज्यादा जाऊं। और समटाइम इट्स हैपन बिकॉज यू नो प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल पाता है बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो भी क्लाइंट होता है उसको ऐसा लगता है कि मेरे को सिर्फ कंप्लायंस ही करना है ना, तो मैं करके छोड़ दूं, विच इज रॉन्ग। एक्चुअली क्या होना चाहिए सर, जो भी कस्टमर के साथ डील किया ना, उस कस्टमर को ये अवेयर होना चाहिए कि वो एग्रीमेंट टू सेल में उस एजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, एक रियल एस्टेट एजेंट जो कि काफी सारी डील्स करके बाद में उनका ही वाज नॉट यू नो अवेलेबल इन अहमदाबाद एंड ही लेफ्ट। यू मस्ट हैव रीड इन द न्यूज़पेपर आल्सो। तो उस केस में क्या होता है, अगर रियल एस्टेट एजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर हम मेंशन करते हैं और किसी प्रकार का अगर कोई सपोज इन केस ऑफ डेवलपर अगर क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा है, मतलब कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, तो आप किसको सबसे पहले कैच करेंगे? सबसे पहले एजेंट को कैच करेंगे ना, कि भाई आपके थ्रू ये सेल हुआ है, राइट। कल अगर वो एजेंट उस चीज के लिए मना कर दे तो आप एक कंप्लेन तो फाइल कर सकते हैं अगर एग्रीमेंट टू सेल में उसका नंबर लिखा है तो ये जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जनरली कस्टमर भी मिस कर जाते हैं और इवन रियल एस्टेट डेवलपर भी शायद मिस कर जाते हैं बहुत सारे केसेस में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान में रखना चाहिए। अब हम अलोटी की बात करते हैं सर। अलोटी के केस में फर्स्ट बायर सेकंड बायर है। लीज पे अगर प्रॉपर्टी दी जाती है तो वो भी बायर इंक्लूड होते हैं। अब लीज की बात करें तो 7 ईयर 8 ईयर 9 ईयर 10 ईयर इज नॉट द लीज, राइट, विच इज नॉट कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ द अलोटी। लीज जो हम अगर अपन नॉर्मल बात करें जहां सब्सटेंशियल लाइफ ऑफ द एसेट्स इज कवर्ड एंड द टाइम पीरियड, देन दैट लीज विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द मतलब दैट लीज ट्रांजेक्शन, और जो कस्टमर है जो लीज पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो अलोटी की डेफिनेशन में फॉल होंगे, राइट। सो लेसी के केस में भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारी बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई डेवलपर प्रोजेक्ट डेवलप किया है, सपोज बैंक को कोई यूनिट दिया है, कहीं किसी रिलायंस बिग बाजार इनको अगर यूनिट देते हैं लीज पे, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं, नहीं तो हम डील नहीं करेंगे। सो उस केस में हमने काफी ओपिनियन दिए हुए हैं। उस केस में ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया जो लीज पे है उसमें रेरा कवर नहीं होता है। हाँ, अगर सब्सटेंशियल लाइफ ऑफ पीरियड अगर कवर है तो लीज के केस में रेरा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बहुत सारी बार बैंक जो होते हैं वो डील कैंसिल कर देते हैं बिकॉज रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता डेवलपर का, और जबकि प्रॉपर्टी डेवलप की जाती है लीज पे देने के लिए, राइट। सो लेसी इज ऑल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द अलोटी। अब हम अगर बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की,
जैसा कि अभी बताया, एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा इशू है। आपने भी देखा 5 लाख की 6 लाख की पेनल्टी लगी थी। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, गांधीनगर के आई थिंक वो डेवलपर है। मे बी एनी ऑफ क्लाइंट, किसी का क्लाइंट है? चिंतन जी आपका क्लाइंट है? नहीं नहीं, नॉट माय क्लाइंट, आई तो जस्ट रीड इन द न्यूज़पेपर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो मतलब गांधीनगर में हो सकता है किन्हीं के क्लाइंट हो वो एडवर्टाइजमेंट के केस में सर, मतलब दर्शित जी कुछ कहना चाहते हैं? दर्शित जी के क्लाइंट थे? आई एम नॉट श्योर सर। अच्छा, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है सर कि जो एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन है वो ब्रॉड डेफिनेशन है। अगर हम इसको समझना चाहें ना, आप देखेंगे तो एनी डॉक्यूमेंट थ्रू एनी मीडियम, हम मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू किसी भी मीडियम से अगर हम किसी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन बताते हैं या उसकी पब्लिसिटी करते हैं और किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट में आके यूनिट खरीदिए या पैसा दीजिए, सो दैट्स बिकम एन एडवर्टाइजमेंट। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन है कहाँ कहाँ काम आती है? सेक्शन 3 में आती है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन किए हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। सेक्शन 7 में काम आती है, सेक्शन 12 में काम आती है वेरासिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आपने अभी निपुण जी का एग्जाम्पल देखा होगा, उन्होंने बताया था 5 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल, 1 किलोमीटर दूर है स्कूल, 500 मीटर दूर है कोई भी क्लिनिक, एग्जाम्पल, मंदिर 200 मीटर दूर है। अब ये सारी चीजें डेवलपर्स एडवर्टाइजमेंट में लिखते हैं। क्या वो रियल में वो 5 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर है? 1 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट 10 किलोमीटर दूर है, क्या उसका एक्चुअल मेजरमेंट है? दैट इज कम्स अंडर द वेरासिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। हम जनरली प्रोफेशनल उस चीज पे फोकस नहीं करते हैं। हम क्या सोचते हैं, अरे चलो हो गया ना यार, डेवलपर ने कर दिया, अपने को क्या उससे लेना देना, ब्रोशर दिया अपन तो अपलोड कर देते हैं, राइट? सो दैट शुड नॉट बी देयर। वी कैन एडवाइज आवर क्लाइंट एंड वी कैन चार्ज समथिंग फ्रॉम क्लाइंट। अगर ये एडवर्टाइजमेंट जो दिया है, अगर सपोज एग्जांपल, दिस इज अगेन माय पर्सनल व्यू, सपोज एग्जांपल मैं कोई यूनिट में प्रोजेक्ट में यूनिट लेने जाता हूं, वहां पे डेवलपर ने ऐसा बोला है कि सर स्कूल तो मेरे प्रोजेक्ट से 500 मीटर दूर है। मैं सोचता हूँ सुबह सुबह बच्चे को छोड़ के आ जाऊंगा पैदल चल के, मुझे पता चला वो 500 मीटर दूर नहीं है, वो स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, राइट? अगर वो स्कूल 2 किलोमीटर दूर है तो उसके लिए मुझे 2 व्हीलर लेना पड़ जाएगा, तो ये मेरे लिए नुकसान हुआ, क्योंकि मैं तो यही मान के चल रहा था, या चलो मेरी वाइफ छोड़ने गई, मैं ये एग्जांपल समझ रहा था मेरे घर में स्कूटर नहीं है, मेरे लिए ही है। सो दिस इज कॉल्ड वेरासिटी। क्या मैं उसके लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूँ? मेरे हिसाब से कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो 500 मीटर की दूरी देखते हुए मैंने वहां यूनिट खरीदा था। अगर मुझे ये पता होता 2 किलोमीटर है तो शायद मैं वहां यूनिट ना खरीदता। तो अभी आजकल वो लोग ऐसा लिखते हैं ना, वो 5 मिनट की दूरी पे ना, 2 मतलब लाइक सब्जेक्टिव कर देते हैं फिर वो लोग। हाँ, तो सर वो जो चीज होती है ना, वो चीज फॉल होती है सेक्शन 12 में, वेरासिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ऐसा एक बॉम्बे डाइंग का एक जजमेंट है, उसमें ऐसा ही किया गया था। 7 एकड़ की जमीन पे लैंड, 7 एकड़ की जो जमीन होगी उस पे एक बहुत बड़ा अच्छा गार्डन होगा, आपके यहाँ ऐसी ऐसी फैसिलिटी होगी, इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट करके कस्टमर को अट्रैक्ट किया गया था। बाद में पता चला न तो उतना बड़ा वहां पे गार्डन है, ना ही कोई दूसरी ऐसी फैसिलिटी है। तो अल्टीमेटली कस्टमर ने क्या बोला, हमको ये मकान चाहिए ही नहीं, और उन्होंने उस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ करने पर उनको रिफंड विद इंटरेस्ट मिला। सो दिस इज कॉल्ड वेरासिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अगर हम ये चीजें अगर हम अपने क्लाइंट को अगर एडवाइस करते हैं तो आई थिंक दैट कैन बी ए गुड थिंग। अदरवाइज कभी इसी प्रकार की कोई कंप्लेन होती है सो देयर में बी ए फॉल्ट ऑफ द रियल एस्टेट डेवलपर। सो अगर हम सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 की बात करें, आप देखते होंगे काफी सारे रियल एस्टेट डेवलपर है। गुजरात रेरा में एक सर्कुलर आया था, उसमें ऐसा लिखा गया था कि जो आपने मोबाइल नंबर लिखा है उसी फॉन्ट की साइज या उससे ज्यादा में आपका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और वेबसाइट होना चाहिए। उस चीज को मुझे नहीं लगता कि शायद स्ट्रिक्टली कोई डेवलपर्स या मेजर डेवलपर उसको फॉलो कर रहे होंगे। करेक्ट? ये जो 6 लाख रुपए की पेनल्टी लिखी थी उसमें ये चीज भी मेंशन की गई थी, राइट? सो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए और डेवलपर को बतानी चाहिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मैं इस पे अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा। कारपेट एरिया अगर किसी को समझना है तो आई कैन एक्सप्लेन, अदरवाइज आई विल मूव।
carpet area मतलब तो the usable area, like actually what is there under our But possession. here it is usable area, but internal wall is included in the carpet area. Okay. पहले जब हम समझते थे रेरा से पहले हम ऐसा सोचते थे कि इंटरनल वॉल को कारपेट एरिया में कंसीडर नहीं कर सकते थे. दिस इज द माय एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव सीन इन द मेनी रियल एस्टेट डेवलपर्स. बट रेरा आने के बाद जो इंटरनल वॉल है उसको भी कारपेट एरिया में इंक्लूड किया गया है, एक्सटर्नल वॉल को उन्होंने नहीं किया है. सो पहले इंटरनल वॉल को वो कंस्ट्रक्शन एरिया में इंक्लूड करते थे कि भाई ये जो मेरा बिल्टअप एरिया या मैंने कितना कंस्ट्रक्शन किया है, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरनल वॉल तो बनानी पड़ती थी. सो इंटरनल वॉल इज आल्सो पार्ट ऑफ द कारपेट एरिया. ये अगर आप इस सीन में देखेंगे कि ये फ्लैट का मैप है, प्लान है, उसमें आप देखेंगे रूम के बीच में ग्रीन कलर की विंडो है, सॉरी दीवार है. सो दिस एरिया इज आल्सो कवर्ड अंडर द इंटरनल, दिस इज द इंटरनल वॉल. तो अगर हम कारपेट एरिया की डेफिनेशन देखें, सो net usable floor area of the apartment excluding the area covered by external wall. तो केवल उन्होंने एक्सटर्नल वॉल को बाहर किया, इंटरनल वॉल को उन्होंने इंक्लूड किया. नीचे लिखा भी है but includes the area covered by the internal partition of the wall of the apartment. Okay. But sir, when an internal wall is like that, let's say there are two office 1, 2, 3. So 2 number office is an internal wall, and that is like separating the unit number 1 and 2. So That is whether it will be external that is external wall. Okay. That is, so that's an separating both the units. So it's an external wall. External wall. This is not internal Okay. wall. Okay. Internal means like in 1 number office is mine, and whatever the walls are there within the office, ये my देखिए. 1 number office, that will be considered as a part of the. Okay. ये देखिए आप, ये ऑफिस का मैप है. Got that. I go. ये वो टॉयलेट्स की वॉल है, बराबर है. वो टॉयलेट्स की वॉल इंटरनल वॉल है. Got that. बराबर है. एनी अदर पार्टिसिपेंट्स? हाँ, रमेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं. रमेश जी. सर एक्चुअली अभी जो अपना एप्लीकेशन डालते हैं रेरा 2 में, उसमें ऑलरेडी मेंशन करना होता है कि एयरपोर्ट कितना दूर है या रेलवे स्टेशन, उसी एप्लीकेशन में मेंशन करना होता है रजिस्ट्रेशन का अपना जो एप्लीकेशन. उसका मतलब उन्होंने ये तो नहीं बताया कि एयर डिस्टेंस है या रोड डिस्टेंस है, बट दे हैव मेंशन दैट कि भी कितना डिस्टेंस है रेरा 2 में जो नई एप्लीकेशंस हो रही हैं उसमें. ओके. तो क्या इसका इम्पैक्ट कोई मतलब फ्यूचर में हमें उसको किसी ध्यान में रखने वाली चीजें हैं उसमें? सर ये ध्यान में रखने वाली चीज है. मेरा पर्सनल व्यू, मैं आपको अपना खुद का एक एग्जांपल देता हूँ. एक रियल एस्टेट डेवलपर मेरे पास आए थे, उनको प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कराना था. तो उन्होंने ब्रोशर में मेरे को ऐसा ही 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लिख के दिया. मैंने उनका ब्रोशर देखा, मैंने उनको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि सर क्या आपने पूरा मेजरमेंट किया है? बोले नहीं किया है. तो मैं बोला या तो आप मेजरमेंट करके डालिए, राइट, या मैंने उनको अपनी साइड से एक्सप्लेन कर दिया कि इसका इफेक्ट क्या है, राइट. देन इट इज द कॉल ऑफ द रियल एस्टेट डेवलपर कि भाई वो क्या करना चाहते हैं. सेक्शन 12 यही बोलती है वेरासिटी. वेरासिटी का क्या मतलब है? जो मैंने बोला है वो एक्चुअल में नहीं है. मैं आपको ऐसा एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा हूं जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होके वहां पे आता है. अगर वो एक्चुअल में जब आए और उसको वो चीज नहीं मिली तो क्या होगा? या तो कस्टमर, सेक्शन 12 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 12 ये बोलता है कि बिकॉज ऑफ द वेरासिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आप उस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर सकते हैं, रिफंड विद इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं. अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं. तो मेरा प्रश्न थोड़ा एक सवाल में थोड़ा एडिशन करना चाहूंगा. सपोज मैं एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ, उस टाइम पे लिखा है कि भाई एयरपोर्ट यहाँ से कितना दूर है, एप्लीकेशन में ही डालना. पहले तो एडवर्टाइजमेंट में आता था, ठीक है. अब मैं डिस्टेंस पकड़ूंगा ऑनलाइन, मुझे दिखाई देगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो दैट विल बी वैलिड, क्योंकि मुझे सपोज गूगल से मैं ले रहा हूँ कि सर आप ज्यादा से ज्यादा ऐसा कर सकते हैं. मेरा पर्सनल व्यू, मैंने रेरा 2.0 में कोई एप्लीकेशन डाली नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज मेरा कंप्लायंस का काम कम है. मैं लिटिगेशन का काम ज्यादा करता हूँ रेरा में स्पेसिफिकली, ठीक है. मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि रेरा 2.0 अगर ये अलाउड कर रहा है आपको वहां का फोटो कैप्चर करके डालने के लिए,
राइट? सो देन जो भी आप गूगल से डिटेल ले रहे हैं उसका फोटो कैप्चर करके वहां डाल दीजिए. This is my personal view and suggestion on that part. क्योंकि प्रोजेक्ट से 5 किलोमीटर एग्जैक्ट दूरी है नहीं है. मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, अगर कोई टेढ़ा कस्टमर आ गया एग्जांपल, राइट, बोले मेरे को तो फाइट करनी है, उसको तो 1000 रुपये ही लगना है ना कंप्लेन फाइल करने का. पैसा तो उसने दे ही दिया है, उसको तो 1000 रुपये ही लगना है, राइट? वो तो कंप्लेन फाइल कर देगा. मैं आपको बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू माई व्यू दैट वुड बी द कंप्लेंट वेरासिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. आपने 5 किलोमीटर बोला है, लेकिन सपोज कोई स्कूल 7 किलोमीटर हो गई तो, क्योंकि आज आप ये एडवर्टाइजमेंट करते क्यों है? एडवर्टाइजमेंट इसीलिए करते हैं ना कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, राइट? सर एडवर्टाइजमेंट तक का तो कंसेप्ट पता चल रहा था, लेकिन अब तो कंपलसरी हो गया कि मुझे ये डिटेल रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में डालना है. वो डिटेल पब्लिक फोरम में आ रही है क्या? आई थिंक अब जैसे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आएगा तो वो पूरा वेबसाइट पे मतलब दिखेगा कि भी यहाँ से स्कूल इतना है ये, क्योंकि जो फॉर्मेट जो उन्होंने बना के दिया था हमने एप्लीकेशन, अगर वो पब्लिक फोरम में आती है और अगर वो गलत निकलती है तो मेरे हिसाब से वो फिर गलत होगा. बट सर एग्जैक्ट आप जो उसका मेजरमेंट तो किसी भी चीज का कहाँ से ले सकते? सर आप एग्जैक्ट का मतलब समझिए. 5 मैंने बोला 500 मीटर, 500 मीटर की जगह 510 मीटर हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन आप 500 मीटर बोल के अगर वो 2 किलोमीटर हो जाता है तो इट इज ए ह्यूज डिफरेंस. आप समझ रहे हैं? 500 मीटर में पैदल चल के जा सकता हूं, जरूरी नहीं ना मैं 2 किलोमीटर पैदल चल के जाऊं. आज आप कभी भी किसी भी आप कहीं भी कोई भी कस्टमर, नॉर्मल कस्टमर कहीं भी कोई प्रोजेक्ट में यूनिट लेने जाता है तो वो क्या देख के जाता है? आसपास की जो भी सराउंडेड फैसिलिटी है, कभी मैं यहाँ रहूंगा तो हॉस्पिटल कितना दूर होगा, ये सब चीजें देख के जाता है ना. अगर वो चीज देखने के बाद भी अगर उसको कोई किसी चीज की, वो तो रोज नहीं मेजरमेंट करता है, वो तो एक किसी भी प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट, उसी पे बिलीव करके जाता है, करेक्ट? तो अगर वो गलत हुई है और अगर उससे उसको नुकसान है तो मेरे हिसाब से ही कैन गो फॉर अ कंपनसेशन. This is my personal view on that part. There may be different view, but there are a lot of judgment. अगर हम section 12 को read करें, if it is there, I'll read. यहाँ पे नहीं है, एक मिनट, I'll open the another slide. I think, sir, as a consultant, we have to take measurement from customer side. हमें मतलब हमारा जो कस्टमर है, डेवलपर है, उससे मेजरमेंट लेनी चाहिए ना फिर तो, क्योंकि हम अपनी तरीके से डालेंगे एप्लीकेशन. नहीं सर, आप अपनी तरीके से डाल रहे हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ सकती है, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है. इन राइटिंग वी हैव टू टेक इन राइटिंग. हाँ, मैं तो बोलता हूँ आप डेवलपर को सजेस्ट करो ना, गूगल मैप स्क्रीनशॉट करके भेजे. आप समझिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट तो वही आपका इशू क्लोज हो जाएगा. मैं आपको सेक्शन 12 पढ़ के बताता हूँ सर. सेक्शन 12 क्या बोलता है? Where any person makes an advance or deposit on the basis of information contained in the notice, advertisement or prospectus, or on the basis of any model apartment, plot or building as the case may be, and sustain any loss or damage by reason of any incorrect, false information included therein, he shall be compensated by the promoter in the manner. So this section 12 is only talking about the advertisement. So अगर वो रेरा की एप्लीकेशन में कहीं होता है तो वहां चांसेस फिर कम हो जाएंगे. ओके. बट अब वो इंफॉर्मेशन बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट जा रही है, रेरा अथॉरिटी वो इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं, देयर मे बी डिफरेंट व्यू एंड इंटरप्रिटेशन, दैट मे बी पॉइंट ऑफ डिबेट.
बट हमारा तो एज ए प्रोफेशनल हमको तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन वो लाइन पे हो, ताकि अपने क्लाइंट को उसका फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं हो। No जो भी आधार पे हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो बेस को अपने पास स्टोर करके रख लें। या बट सर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरा मतलब आपको पर्सनल सजेशन ऐसा है, क्या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की ये ड्यूटी है? We are helping in filing the application. सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप फाइलिंग एप्लीकेशन करने के लिए दे रहे हैं, सो क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की ड्यूटी है? मैं ये चीजें जो आपको बता रहा हूँ ना, उसके पीछे एक लॉजिक है सर, विच वी जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाट वी डू, हम ये बोलते हैं कि चलो ना हमारे को रेरा रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन आ रही है, करेक्ट? राइट। हम क्या करते हैं, 4 चीजें और एडवांस में बताते हैं। क्या हम उसके लिए कुछ चार्ज करते हैं फीस? सर हम तो पूरा चार्ज करके ही चलते हैं, मतलब एप्लीकेशन का। सर आप एप्लीकेशन का चार्ज कर रहे हैं, मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ बियॉन्ड एप्लीकेशन बता रहा हूँ। As for example, समझ में नहीं आया सर जो मैंने एडवर्टाइजमेंट का बताया आपको, इसे तो बियॉन्ड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। आप क्या उसके ब्रोशर को पढ़ते हैं क्या? ब्रोशर हम उनसे मंगवाते हैं, अगर हमको कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें लगती है तो आपने कभी एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचा क्या? एडवर्टाइजमेंट के बारे में तो पहले ही उनको यहाँ से हमारा जो मतलब जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड मेथड है वो उनको बता देते हैं कि इतनी इतनी चीजें यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। सर आपने सेक्शन 12 का कभी रेफरेंस दिया है क्या? अब सेक्शन 12 करके उनको बोलेंगे तो वो मतलब उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली मेरा मीनिंग जो है ना सर, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल, मैं ये जो बातें बताने का रीजन ये है कि देयर शुड बी सम यू नो, if we are putting our heads on something particular law, then we should also get an advantage in terms of our fees. That's right. This is my only view. Today one of my friend called me, right? He asked something. मैं बोला I will tell you. You will also tell your client. But what will you get? बोले nothing. I will not get anything. मैं बोला why? You have invested your 1 hour into that, right? I asked him, बोले यार मेरे को तो रेरा रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करना है। मैं बोला is it in your scope, whatever you question you are asking and you are replying? बोले no it is not in my scope. Then why are you investing your 1 hour into that? When it is not in your scope, you want to give the advice, you give the advice, but you charge something which generally we do not. Anyway, this is depend on client to client and professional to professional. Yeah that's so I will just a minute. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। Yeah, I have muted just yeah. तो मेरा पर्सनल व्यू यही रहता है कि हम कभी भी किसी चीज के अगर हम we go beyond our scope, then my personal view is that we should take in a professional way instead of कि यार मेरे पास रेरा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आया है तो मैं सब कर दूं. Anyway, this is again depend personal to individual, professional and developer. अभी सर इंपॉर्टेंट बात जो मैं एलओटी के बारे में आपको बता रहा था, स्ट्रक्चर डिफेक्ट का, अभी वहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है सर स्ट्रक्चर डिफेक्ट में? हम सभी ये पॉइंट पे ध्यान देते हैं, स्ट्रक्चर डिफेक्ट का जो लाइबिलिटी का जो क्लॉज है वो कब तक एप्लीकेबल है? कोई मुझे बता सकता है? रमेश जी आप रेरा में काम करते हैं, आप बता पाएंगे? क्या कह रहे हैं सर? स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का मींस इन व्हाट सेंस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का? अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आती है तो उसमें 5 इयर्स मेंटेनेंस पीरियड तो आपके पास में अवेलेबल ही है। पार्डन? 5 इयर्स तो आपके पास अवेलेबल ही है फ्रॉम द से है। हाँ वो 5 ईयर कब से है? जब से आप सोसाइटी को हैंड ओवर कर रहे हैं तब से। अच्छा, और कोई दूसरा व्यू है इसमें? व्यू से भी लेके जा सकते हैं आई थिंक। चिंतन जी आप रेरा में प्रैक्टिस करते हैं, आप बताइए। आवाज म्यूटेड है सर आप। हाँ सर, अकॉर्डिंग टू मी तो there is a 5 year clause is there, but like even I am not much of the aware of what is this liability clause, whether 5 year or lesser or. Please raise your hand.
there will be few participants as such, but Can anybody yeah. give the answer, or everybody is muted and just? चलिए कोई बात नहीं, ये सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 की डेफिनेशन है, कोई पढ़ के बता सकता है? अपने मन में ही पढ़ के बताइए, इसमें आपको आंसर मिलेगा। जैसे इसमें लिखा है कि फ्रॉम द डेट ऑफ हैंडिंग ओवर पोजीशन। अब पोजीशन तो मतलब हो सकता है कि कुछ सेल बाद में हुआ है, इवन आफ्टर 2 years, मे बी आफ्टर 3 years, then what will be the situation? Yes, exactly. So for every individual, the 5 year will be from the date of possession. आप समझ रहे हैं इसका इंटरप्रिटेशन? आज मैंने कोई यूनिट खरीदा 31 मार्च 2022 को, सपोज, राइट, और 1 महीने बाद चिंतन जी ने उसी प्रोजेक्ट में कोई यूनिट खरीदा है, तो मेरे लिए तो 5 साल चालू हो जाएंगे 1 अप्रैल से, चिंतन जी के चालू होंगे जब से उन्होंने पोजीशन लिया है तब से। और अगर कोई प्रोजेक्ट में कोई यूनिट रह जाता है और सेल नहीं होता है, सपोज 3 साल के बाद हुआ है, तो उसके लिए वहां से शुरू हो गए 5 साल। ये जो कंफ्यूजन है काफी लोगों को रहता है, सेल डीड से हो गया, काफी लोगों को रहता है सोसाइटी हैंडओवर से हो गया, काफी लोगों को लगता है एग्रीमेंट टू सेल होने से हो गया। सो दिस इज नॉट द क्लॉज। एक बात बताइए, जब तक मैं घर में रहूंगा नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है? और दूसरा, एक यूनिट में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि पास वाली में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं होगा। करेक्ट रमेश जी? मैं समझ गया सर, लेकिन इसमें मतलब ये थोड़ा, अगर लीगली तो लिखा ही है, लेकिन अगर लॉजिकली इसको सोचते हैं तो मतलब ये तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि ये प्रोविजन बराबर है, क्योंकि 5 years अगर आप मतलब पोजीशन जिसका आपका रह गया वो तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो 10 साल के बाद हो सकता है स्ट्रक्चर में इश्यू भी आए उसके तरफ। यस, तो उसके लिए लाइबल है डेवलपर। AS29 पढ़ा सर आपने? AS29 के हिसाब से लीगल प्रोविजन तो क्लियर ही है एकदम। AS29 के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोविजन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसका क्या रास्ता है बताइए आप? प्रैक्टिकली बात करते हैं। चलिए, मैं शायद फॉर्म 5 तक पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे नहीं पता है सर। प्रैक्टिकली तो आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है। नहीं, पर फिर आप आपके डेवलपर से फीस चार्ज करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो सर उनको 100% करेंगे ना। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट करे, लिक्विडिटी डैमेज जो होती है ना, वो एक तो होल्ड करके रखे, LD क्लॉज बोलते हैं ना, रिटेंशन मनी। ठीक है, एक तो रिटेंशन मनी हेल्ड करके रखे, दूसरा एक लिक्विडेटेड LD का क्लॉज होता है, लिक्विडेटेड डैमेज का, वो एक क्लॉज करके रख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, जो कि रियल एस्टेट डेवलपर को महंगा भी पड़ सकता है, पर दे कैन गो फॉर द इंश्योरेंस ऑल्सो। अल्टीमेटली पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि फ्यूचर में कोई लायबिलिटी आ गई तो क्या इश्यू। अब डेवलपर बोलेंगे, अरे मैं थोड़ी कोई गंदी क्वालिटी का मकान बना रहा हूं कि मेरे को इश्यू आएगा, मैं क्यों इंश्योरेंस का खर्चा करूं? हो सकता है, but structural defect का issue तो he is not aware, because he is not standing whole time when the project is constructed, right? He will not be standing ना, उसका तो आदमी काम कर रहा होगा, भले वो अच्छी रेती, अच्छी कपची लाके दे दे, अच्छी क्वालिटी की सीमेंट लाके दे दे, अच्छी स्टील लाके दे दे, but is there any guarantee? So how professional we can advise? कॉन्ट्रैक्टर को रेस्पॉन्सिबल ठहराइए, उसमें क्लॉज डालिए उसके एग्रीमेंट में, आप इंश्योरेंस लीजिए, इस तरीके का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रोविजन करिए। AS29 you can build a protection wall for you, means आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, अपने लिए प्रोटेक्शन वॉल क्रिएट करो। यस यस यस। आपने कोई मटेरियल यूज करा, उसका 5 ईयर का वारंटी कार्ड नहीं होता है? क्यों होता है? आज आप काफी सारे देखेंगे प्लम्बिंग मटेरियल आता है, जैसे एग्जांपल सेरा के आइटम्स आते हैं, आप देखेंगे 5 ईयर का वारंटी होता है, 5 साल तक वो आपको फ्री सर्विस देके कोई भी आइटम में कुछ भी इश्यू हो दे
डू इट, सॉरी सेरा नहीं, जकवार, वो फ्री ऑफ चार्ज करके जाते हैं. सो समथिंग काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन एडवाइज आवर क्लाइंट, क्योंकि जनरली वो किसी के दिमाग में नहीं आता. अभी आपने जैसे बोला, भले आप रेरा में प्रैक्टिस करते हैं, बट आपके दिमाग में क्या है कि सोसाइटी हैंड ओवर की है, मेरा स्ट्रक्चर डिफेक्ट का पीरियड चला गया. करेक्ट? ऐसा नहीं है. तो हम हमारे क्लाइंट को उस एंगल से एडवाइस कर सकते हैं. ठीक है सर, एक सवाल है बीच में पूछ लूं, वैसे वो टॉपिक अभी इसमें आया नहीं है. पूछिए, क्योंकि जो अपना टाइम है ना ऑलरेडी 6:30 और मुझे फॉर्म 5 पे थोड़ा सा शॉर्ट में बताना पड़ेगा. बोलिए. ओके सर, एक ही सवाल था कि ये जो सेल डीड का क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे रेवेन्यू में तो परमिट करते हैं कि बिफोर बीयू इवन यू कैन गो फॉर द सेल डीड, लेकिन रेरा के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि सेल डीड बीयू से पहले नहीं करने चाहिए यूनिट्स के. कहाँ लिखा है? सर एक पर्टिकुलर प्रोविजन है, अगर तब तक मैं बीच में अगर मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं आपको फॉरवर्ड नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ सर. सर ये रेरा का जो पूरा मतलब इसके ऊपर ही था. इवन हमारे जो चेयरमैन थे वो यहाँ पे प्रेजेंट थे, उन्होंने मीटिंग के अंदर ही ये चीज भी बताई थी और वो पर्टिकुलर एक सेक्शन का उन्होंने रेफरेंस दिया है. अगर इफ पॉसिबल मैं अपने यहाँ से आपको शेयर कर रहा हूँ. कोई दिक्कत नहीं है सर. सेक्शन 17 आप मेरे को 1-to-1 भी कॉल कर सकते हैं सर. सेल डीड करने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अभी आपको निपुण जी ने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जितना जल्दी हो, भले प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर कोई आपको लगता है कि आपने अगर सेल डीड कर दिया है तो वो प्रॉपर्टी आपकी सिक्योर्ड हो जाती है. अगर सपोज डेवलपर इंसॉल्वेंसी में चला जाता है, बराबर है, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा. अगर आपकी सेल डीड हो गई तो आप सिक्योर्ड हो गए, आपके पास टाइटल आ गया प्रॉपर्टी का. राइट? अब सर इशू जो क्या होता है ना सर, जो समझने का इशू है, बीयू आने के पहले आप पोजीशन नहीं दे सकते. बीयू का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग यूज परमिशन. बिल्डिंग यूज नहीं कर सकते जब तक वो परमिशन उसकी नहीं आ जाती. मींस यू हैव टू डू सेल डीड विदाउट पोजीशन. ऑब्वियस है सर. नहीं, सेल डीड जो होती है सर वो विदाउट पोजीशन विद पोजीशन वाला मैटर नहीं है. सेल डीड इज सेल डीड. पोजीशन के लिए एक अलग से लेटर, एक अलग से डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं. आप समझ रहे हैं? आज मैंने अलॉटमेंट लेटर कर दिया है, राइट? आज प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं होता है, बैंक से अगर फाइनेंस होता है तो क्या बिना सेल डीड के डिस्बर्समेंट होता है क्या? नहीं होता है. तो फिर कल तो आप बोल देंगे नहीं करेंगे. आप बैंक कैसे सेल डीड करेगा? सेल डीड के बिना बैंक फाइनेंस का लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं ना. नहीं देते. तो फिर लेकिन रेरा में क्या एक लिखा हुआ है जैसे अप टू कंप्लीशन आपका 95% जो है वो सर वो याद आ जाए ना, तो याद आ जाए तो मेरा नंबर शायद आपके पास होगा. मैं 100% शेयर कर रहा हूँ सर, क्योंकि वो मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, क्योंकि वो चेयरमैन ने खुद से बताया जा रहा है. नहीं होता है. मैं आपको ऐसा भी बता दूं, काफी सारी जगह ऐसा भी कंफ्यूजन होता है कि बिना पेमेंट किए सेल डीड नहीं हो सकता. काफी सारी जगह ऐसा भी कंफ्यूजन होता है. अब मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए. कोई डेवलपर, रियल एस्टेट डेवलपर कहीं से लैंड बाय करता है, राइट? तो क्या 100% पेमेंट दे देते हैं लैंड डेवलपर को? नहीं, अगर वो सेल डीड करते हैं तो उसमें अनपेड चेक्स भी होते हैं बहुत सारे. हाँ, तो पेमेंट तो नहीं हुआ ना. बैंक के केस में क्या होता है? बैंक एक ड्राफ्ट डीडी देता है ना सर. वो कॉपी देते हैं. कॉपी देते हैं ना चेक की या डीडी की, मेंशन करके सेल डीड होती है ना. पेमेंट आता है कि 100%? नहीं, वो तो बाद में ही आना. एग्जैक्टली. तो सेल डीड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर. आप रेरा में एक ऐसा ऑर्डर भी आया हुआ है जहां एक डेवलपर ने महाराष्ट्र में पोजीशन दे दिया था विदाउट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया गया और कस्टमर के ऊपर भी एक्शन लिया गया कि जब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आया गया आपने पोजीशन क्यों लिया. ओके. तो जब तक बिल्डिंग यूज परमिशन नहीं मिला है आप उसमें रह नहीं सकते. ओके. दिस इज माई पर्सनल व्यू एंड मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी यही है, बोलता है कि बिल्डिंग यूज परमिशन को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बिल्डिंग को यूज करने का परमिशन है. बिल्डिंग यूज परमिशन कब मिलता है? जब ड्रेनेज फैसिलिटी हो जाती है, जब इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो जाती है, जब पानी की सुविधा हो जाती है. करेक्ट? ओके, करेक्ट. सो दिस इज माई व्यू. ओके. ओके, थैंक यू सर. एनी अनदर पॉइंट जनरल प्रैक्टिस में अगर किसी को आ रहा हो तो वी कैन हैव अ डिस्कशन.
यहाँ एक सेक्शन 18 में बहुत बड़ा मुद्दा है सर। सेक्शन 18 क्या बोलता है? डिले इंटरेस्ट का पोजीशन, सॉरी डिले इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। अब डिले पोजीशन का इंटरेस्ट, तो पोजीशन जो डिले हुआ उसके लिए डेट कहां से काउंट करना पड़ता है? तो वो जो डेट काउंट होती है ना सर, जो एग्रीमेंट टू सेल में लिखी होती है, सपोज एग्रीमेंट टू सेल में लिखा है कि मैं 30 जून 2022 को पोजीशन दे दूंगा, और रेरा में डेट लिखी है 31 दिसंबर 2022 कंप्लीशन के, तो क्या अगर मैंने 30 जून 2022 को पोजीशन नहीं दिया तो क्या इंटरेस्ट के लिए मैं जा सकता हूं? सो माय आंसर इज यस। भले आपने प्रोजेक्ट रेरा कंप्लीशन डेट लिखी है 31 दिसंबर 2022, बट आपने मेरे को तो इंडिविजुअली प्रॉमिस किया कि 30 जून 2022 को मैं पोजीशन दे दूंगा, तो वहां पे भी आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। अब मैं ज्यादा उस पॉइंट पे नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा फॉर्म 5 के बारे में आइडिया दे देते हैं। पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर्म 5 में रहता है, तो वेदर इट इज ऑडिट और वेदर इट इज अ सर्टिफिकेट। अकॉर्डिंग टू माय व्यू दिस इज एन अ सर्टिफिकेट, दिस इज नॉट एन ऑडिट। हम ऑडिट करते हैं ऑडिट की तरह, लेकिन ये सर्टिफिकेट है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। काफी लोग इस पे डिफर करते हैं, बोलते हैं सेक्शन 4(2) LD में ऐसा लिखा हुआ है कि यू हैव टू गेट द अकाउंट ऑडिटेड, बट मैं अगर सर्टिफिकेट की लैंग्वेज में देखूं, उसको अगर पढ़ूं, सो दिस इज अ सर्टिफिकेशन नॉट एन ऑडिट। ऑडिट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फॉर्म 5 जो हम इशू करते हैं वो एक सर्टिफिकेट है। दिस इज माय पर्सनल व्यू, राइट। और ये जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में जो लिखा है, ये अलग अलग लैंग्वेज लिखी हुई है। अगर आप गुजरात रेरा का एसओपी देखेंगे तो वहां लिखा है एनुअल ऑडिट, फिर उसी के पॉइंट नंबर 1 में जाएंगे तो लिखा हुआ एनुअल रिपोर्ट, फिर आप उसी के 1.1 में जाएंगे पॉइंट में, तो वहां लिखा है ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 5। फिर आगे जाते हैं तो लिखा है गेट्स द ऑडिट एग्जीक्यूटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अगर हम उसके बाद अगर जाते हैं, ये सारी जगह अगर आप 1.2 में जाते हैं तो वहां देखेंगे एनी चार्टेड अकाउंटेंट विलिंग टू सर्टिफाइड एनी ऑडिट रिपोर्ट, राइट। तो वहां भी ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्म 5 के अंदर जाके देखें तो वहां ये देखिए, आप मैंने मेरी स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, दिस सर्टिफिकेट इज बीइंग इशूड। हम वो एक सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। दिस इज माय पर्सनल व्यू। हो सकता है लोग अपन ऑडिट भी बोलते हैं, बट दिस इज द सर्टिफिकेट। ये कुछ रिलेवेंट प्रोविजन है, सेक्शन 4(2) LD which requires this certification. Regulation 4 talks about this. Gujarat regulation required that promoter has to upload annual report on statement of accounts in form 5 on Gujarat RERA website. Information in form 5 are in addition to the requirement of section 11. Section 11 क्या बोलता है? Quarterly compliances, right? अब देखिए सर, जब पहली बार जब फॉर्म आया था फॉर्म 5, वो एक बहुत शॉर्ट फॉर्म था, राइट। मैं सेक्शन 4(2) LD को एक बार पढ़ता हूं, फिर आपको पुराने फॉर्म 5 के बारे में बताऊंगा और फिर नए फॉर्म 5 के बारे में बताऊंगा। तो रेरा एक्ट जो है, रेरा एक्ट क्या बोलता है? That promoter shall gets his accounts audited within 6 months after the end of the financial year by a chartered accountant in practice, and shall produce a statement of account duly certified and signed by such chartered accountant, and it shall verify during the audit that 2 points are there. Amounts collected for a particular project have been utilized for the project, and second, withdrawal has been in compliance with the proportion to the percentage of the completion of the project. तो ये जो सर्टिफिकेट है उसके देने के पीछे जो इंटेंशन है वो ये है कि पैसा जो लिया है वो प्रोजेक्ट के लिए यूटिलाइज किया है, और विड्रॉ जो किया है वो जितना परसेंटेज कंप्लीशन काम हुआ है उसके प्रोपोर्शनेट में किया गया है। सो दीज आर द 2 थिंग्स अ चार्टेड अकाउंटेंट हैज टू सर्टिफाई बाय वे ऑफ द फॉर्म 5। यही प्रोविजन को लेकर सितंबर 2017 में जब गुजरात रेरा अथॉरिटी ने फॉर्म 5 प्रिस्क्राइब किया था, तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होती थी? वर्क कितना कंप्लीट हुआ है, कितनी अमाउंट जो है कलेक्ट की है फाइनेंशियल ईयर में, और कम्युनिटी अमाउंट कितनी कलेक्ट की है, कितना अमाउंट विड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर, और कम्युनिटी अमाउंट कितना विड्रॉल किया टिल डेट।
or utilization of the amount withdrawn is in accordance with the proportion of the percentage of the completion of the project. So ये जो requirement थी initial form 5 की, वो थी in line with the section 4 subsection 2 subsection L subsection D के हिसाब से. अब उन्होंने क्या किया था, जुलाई 2018 में उन्होंने एक नया फॉर्म निकाला गुजरात रेरा अथॉरिटी ने, और उस फॉर्म में उन्होंने सर्टिफिकेशन के लिए काफी सारी चीजें उन्होंने प्रिस्क्राइब की है उस फॉर्म 5 में. सो देयर आर 12 पॉइंट्स. So according to my view, the whatever the form prescribed by the Gujarat Authority is the beyond the act. This is my personal view, right? और अगर हम बात करते हैं तो कोई भी सेंट्रल एक्ट जो है, तो वो सेंट्रल एक्ट के बियॉन्ड कोई भी स्टेट या कोई भी अथॉरिटी कैन नॉट प्रिस्क्राइब द रूल्स एंड रेगुलेशन. Anyway, this form 5 is not being challenged by anybody, and everybody is doing, complying with that. So we'll not go into that. So there are a total 12 points under the form 5, right? First point is that whether the separate bank account has been opened as envisaged in the Gujarat RERA bank account direction, yes or no. If yes, then we have to click on yes. Agar no, to no pe click karna. Whether the existing operational bank account was made known at the time of application for the RERA registration, yes or no. अगर हमारे को ये चेक करना है तो हमारे को कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी? जब हम रेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम तो बैंक अकाउंट, जो ऑडिटर है, जो ऑडिटर बोलिए या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म 5 सर्टिफाई कर रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि ये रेरा बैंक अकाउंट एज पर द रेरा ओपन किया या नहीं किया है? चिंतन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? उनको यही पता चलेगा कि उनको प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो देखनी पड़ेगी और आपको एक मैनेजमेंट से कंफर्मेशन लेना. सो बाय दिस वे वी कैन डू वेरिफिकेशन ऑफ दिस रेरा बैंक अकाउंट, राइट? सो प्रोजेक्ट एप्लीकेशन में हम रेरा बैंक अकाउंट की डिटेल लेते हैं, तो हमारे को जब सर्टिफिकेशन करना है फॉर्म 5, तब हमारे को ये प्रोजेक्ट एप्लीकेशन ले लेनी चाहिए प्रमोटर से. और दूसरा, अगर उन्होंने कोई चेंज एप्लीकेशन करी है तो हमारे को वो ऑनलाइन भी पता चल सकती है और बाद में भी हम प्रमोटर से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं. पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं. डिटेल्स ऑफ द रेरा बैंक अकाउंट एज रजिस्टर्ड विद द गुजरात रेरा. मेंशन ऑल द बैंक अकाउंट इफ देयर इज बीन चेंज इन द बैंक अकाउंट. तो हमारे को क्या करने का है, जितने भी बैंक अकाउंट है उनकी सारी इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में फॉर्म 5 के अंदर डालनी है. बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जिस दिन अकाउंट ओपन किया, ओपनिंग बैलेंस, डिपॉजिट कितना किया, विड्रॉ कितना किया और क्लोजिंग बैलेंस. Only RERA accounts, right? No, not current accounts. No, only RERA account. Only RERA account. लिखा है सर. ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल सकती है सर? आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लेंगे, आप क्वार्टरली फॉर्म जो सीए सर्टिफाइड की है वहां से पता चल सकता है. क्योंकि अगर एक क्वार्टर में कोई बैंक डिटेल है, दूसरे क्वार्टर में बैंक डिटेल चेंज हो गई है, मतलब वहां पे कोई बैंक डिटेल चेंज हुआ है, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, करेक्ट? तो ये इंफॉर्मेशन हमारे को वहां से मिल सकती है. क्योंकि हमारे को जो फॉर्म 5 जो एनुअल सर्टिफिकेट साइन कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि इंफॉर्मेशन कहां से आएगी. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग. जनरली तो ऐसा, मतलब हाँ, प्रैक्टिकली द सिनेरियो इज कंप्लीटली डिफरेंट, बट आई वुड, मैं बोलना नहीं चाहूंगा वो, बट the person who is certifying this form 5, how he will get the information. So this is the way to get the information. ये लीगल प्रोविजन है गुजरात रेरा बैंक अकाउंट डायरेक्शन के. अकाउंट किस नाम से होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल. रिपोर्टिंग ऑफ द मल्टीपल अकाउंट और चेंज इन बैंक, उससे रिलेटेड लीगल प्रोविजन क्या है? क्लोज नंबर 8, चेंजिंग इन द रेरा अकाउंट. तो अगर मेरे को मल्टीपल रिपोर्टिंग करनी है तो उसके लिए मुझे कौन से प्रोविजन देखने चाहिए? सो जो चेंजिंग इन द रेरा अकाउंट, द प्रमोटर में चेंज रेरा अकाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक अकाउंट. फॉर रेरा बैंक अकाउंट चेंज रिक्वेस्ट उनको देना पड़ता है, राइट? सो दीज आर द इंफॉर्मेशन थ्रू विच वी कैन गेट दैट
जो रेरा बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन डालनी है वो कहां से मिलेगी अपने को, और वहां से चेक करके अपन वो सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। In case of change in the RERA bank account, as indicated above, whether due approval following prescribed documentation was taken from the GUJRERA under the Gujarat RERA Bank Direction 2018 or not. तो अगर हमने रेरा बैंक अकाउंट चेंज किया है तो उसकी प्रोसीजर हमने फॉलो की है नहीं की है, वो इंफॉर्मेशन हमको मांगनी पड़ेगी, राइट। उस केस में हमको प्रमोटर से वो सारी जो इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोसीजर जो फॉलो किया है वो सारी इंफॉर्मेशन मांग के वी हैव टू सर्टिफाइड हियर। वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ चेंज बैंक अकाउंट, तो हमारे को ये जो रेरा बैंक अकाउंट डायरेक्शन की जो पॉइंट नंबर क्लोज नंबर 10, 11, 12, 13 है वो हमको देख के वहां सर्टिफिकेशन हमको करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, वेदर एनी ऑफ द फॉर्म 3 इश्यूड ड्यूरिंग द सर्टिफिकेट पीरियड mandated deposit of the 100% of the money collected from the booking of the project units, refer point 5 of the additional information for ongoing project। तो जो ongoing project है जिसमें ऐसी कोई सिचुएशन आई है जिसमें ऐसा लिखा गया हो कि आपको 100% अमाउंट जो है वो प्रोजेक्ट की आपको कलेक्शन की अमाउंट है रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में डालनी है, वो सिचुएशन कब आती है? जब कलेक्शन हमारा कम आने का होता है और अपना जो एक्सपेंडिचर है वो हायर साइड में होता है, राइट। और वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में ही पॉसिबल है। तो उस केस में क्या करने का अपने को, यस और नो करना है। अगर हमने यस किया है तो वो सर्टिफिकेट जो दिया फॉर्म 3 जिसमें ऐसा आया था कि 100% से ज्यादा आपको पैसा डिपॉजिट कराना ऐसा मेंशन किया गया है, उस सर्टिफाइड प्रोफेशनल का नाम और सर्टिफिकेट की डेट हमको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी, राइट। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे को कहां से मिलेगी? पॉइंट नंबर 5 ऑफ द टेबल, एडिशनल इंफॉर्मेशन द प्रोजेक्ट। तो हमारे को वो सीए सर्टिफिकेट हमारे को लेना पड़ेगा, राइट। अब इसका जो पर्पज है वो पर्पज क्या है? ताकि रेरा अथॉरिटी ये मॉनिटर कर सके कि फ्यूचर में जितने भी सर्टिफिकेशन दिए हैं उसमें ऐसा सारा पैसा रेरा बैंक अकाउंट में गया है या नहीं गया है। दिस इज द पर्पज फॉर दिस क्लोज नंबर 4। क्लोज नंबर अगर हम 5 की बात करें तो वेदर द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द अलॉटी ऑफ द प्रोजेक्ट यूनिट्स एज इंडिकेटेड इन फॉर्म 3 डिपॉजिटेड इन द रेरा बैंक अकाउंट और नॉट। तो रेरा में सारा पैसा डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है वो इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करनी है। अगर नहीं है तो मेंशन द अमाउंट नॉट डिपॉजिटेड अंडर अबव नॉन कंप्लायंस। तो कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक हमने रेरा में इंफॉर्मेशन रेरा बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डाला है वो हमारे को पता करनी पड़ेगी। अब हमारे को इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अलॉटमेंट लेटर, एग्रीमेंट टू सेल और सारे फॉर्म 3 जो सीए सर्टिफिकेट इशूड किए ड्यूरिंग द ईयर, और ऑल बैंक्स अकाउंट्स वी शुड चेक before certifying or before providing the information in this clause number 5. Point number 6, whether the project registration is as new or ongoing. Yes, new है तो new, ongoing है तो ongoing। कहां से पता चलेगा? Project application, registration application से। In case of the new project, whether there was any booking taken prior to the project registration, तो वो कैसे पता चलेगा? हमको फॉर्म 3 देखना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम का, हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने पड़ेंगे, हमारे को अगर अनसिक्योर्ड लोन या बुकिंग में कोई दिखा है तो उसका कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर कोई यूनिट लिया है तो वहां यहाँ इंफॉर्मेशन मेंशन करना पड़ेगा। इफ यस प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स, नंबर ऑफ द यूनिट बुक, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द बुकिंग, टोटल कंसिडरेशन। ये सारी चीजें हमारे को यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड सर्टिफिकेशन हमको उस चीज का देना पड़ेगा। Whether all amounts withdrawn from the RERA bank account were within the withdrawal limit as certified under the relevant form 3 issued during the period, yes or no। तो जो हमने विड्रॉ किया है वो लिमिट के अंदर किया नहीं गया उसका इंफॉर्मेशन देना है। अगर नहीं है तो किस पीरियड में हमने एक्सेस इंफॉर्मेशन किया है और उसका अमाउंट हमारे को यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अब रेरा प्रोविजन क्या बोलता है? सीए सर्टिफिकेट जो दिया है उसी के अंदर हम विड्रॉ लिमिट देंगे। अब जनरली मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि जो फॉर्म 3 1 पीरियड से सेकंड पीरियड में, मतलब हर क्वार्टर में जो दिया गया है, मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि वो लिमिट क्रॉस नहीं होती है। और बीइंग अ प्रोफेशनल जनरली आई डोंट थिंक हम उसको प्रीवियस सर्टिफिकेट को देख के ये चेक करते हैं नहीं करते कि उसी लिमिट से बाहर कहीं पैसा विड्रॉ तो नहीं हो गया, राइट। लेकिन जब हम ये चीज सर्टिफाई कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पुराने फॉर्म 3 में कितनी लिमिट थी
हम क्या करते हैं, क्वार्टर फॉर्म 3 इशू करते हैं। रेरा प्रोविजन क्या बोलता है कि जब भी उस प्रोजेक्ट से अमाउंट विड्रॉ करना है तो आपको सीए सर्टिफिकेट देना है। लेकिन सपोज सीए सर्टिफिकेट में ऐसा लिखा है कि 5 करोड़ आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो 5 करोड़ जब तक मैं विड्रॉ कर रहा हूं तब तक मुझे सीए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे सीए सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो क्या हम वो 5 करोड़ की लिमिट चेक करते हैं? क्या प्रमोटर उस चीज पे फोकस करता है? नहीं करता। उसी कारण से ये इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कराना दिया गया है, राइट। Point number 8, whether any fixed deposit was created out of the funds deposited in RERA bank account. क्या हमने रेरा बैंक अकाउंट से कोई एफडी बनाई है? यस, तो उसका इंफॉर्मेशन देना है। अगर एफडी बनाई है, so whether the fixed deposit is created with the same RERA account bank branch in compliance with the para 5(2) of the Gujarat RERA Bank direction. जो एफडी हम बनानी है वो एफडी उसी बैंक के पास रखनी पड़ेगी, राइट। If yes to 8 above, whether any lien is created, तो जो रेरा बैंक अकाउंट है, जिस बैंक के पास हमारा रेरा बैंक अकाउंट है उसी के पास हम एफडी क्रिएट कर सकते हैं और उस एफडी पे कोई लियन क्रिएट नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड जो लीगल प्रोविजन है वो है सर्कुलर नंबर 2 2017 डेटेड 29 जुलाई 2017। उसमें क्या लिखा था? द सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 LD ऑफ द रेरा shall be a non-lien account and withdrawal from the such separate account shall always be in accordance with the provision of the RERA rules, regulation and circular issued by the Guj-RERA. From time to time, the excess money lying in separate bank account can be put into fixed deposit with the bank operating the separate bank account and which has to be no lien fixed deposit and no loan can be obtained against or on such fixed deposit nor any charge can be created on such fixed deposit. So these are the relevant para clauses for this particular point number 8. अब इसके लिए हम इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? हम नो लियन सर्टिफिकेट ले सकते हैं बैंक से, राइट। जनरली हम लेते ही हमेशा बैंक क्लोजिंग सर्टिफिकेशन लेते हैं 31 मार्च के टाइम। सो इन दैट केस आल्सो वी कैन टेक अ नॉन लियन सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक। पॉइंट नंबर 9, नॉन लियन मतलब व्हाट नॉन लियन सर? सर हम कोई भी एफडी क्रिएट करते हैं ना। हाँ। अच्छा, ओके, सो एफडी इज नॉट लियन समवेयर। ओके। क्योंकि क्या करते हैं उससे ऑडी फैसिलिटी ले लेते हैं ना, तो ऑडी फैसिलिटी लियन क्रिएट हो जाता है। यू आर राइट। तो हमारे को एक सर्टिफिकेट ले लेने का है, ठीक है। Whether there has been any instances of receipt of consideration in excess of 10% of the apartment value without, so section 13 का जो नॉन कंप्लायंस है वहां पे हमारे को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि कौन कौन सी यूनिट में हमने 10% से ज्यादा लिया है, कितना कंसिडरेशन है और अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द 10% टिल रजिस्टर्ड एटीएस एग्जीक्यूटेड, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 इज रिलेटेड टू द बोरोविंग, वेदर द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड बाय द अवेलिंग एनी लोन और बोरोविंग, यस और नो। इफ यस प्लीज प्रोवाइड द डिटेल। हम फॉर्म 3 में भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते ही हैं। पॉइंट 10.2, वेदर द फाइनेंशियल एनकम्बरेंस इज रिपोर्टेड टू गुज-रेरा, वो हमारे को रिपोर्ट करना है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है तब हम एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट देते हैं, उस समय अगर कोई लोन नहीं है, लेकिन बाद में अगर लोन लिया जाता है तो क्या वो इंफॉर्मेशन रेरा में अपडेट की है नहीं की है, सो दैट वी कैन वेरीफाई फ्रॉम दैट पॉइंट, राइट। वो कैसे अपडेट करना रहता है? वो फॉर्म 3 में ही सर डालना रहता है और कोई तरीका है? मतलब फॉर्म 3 के अलावा सर आपको रेरा में चेंजेस एप्लीकेशन भी डालना पड़ता है। अच्छा, 5,000 रुपए भर के वो आपको चेंज एप्लीकेशन वहां देनी पड़ती है कि हमने लोन लिया है और एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट देके वहां पे अपडेट करना पड़ता है, तो रेरा वाले फिर उसको अपडेट करते हैं। तो वो जब जो फॉर्म 5 CA सर्टिफिकेट कर रहे हैं उनको ये चीज इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए प्रमोटर से। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 11, ये बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है। वेदर एनी डिस्क्रिपेंसी नोटिस इन फॉर्म 1, 2, 3 विद रेफरेंस टू देयर इश्यूएंस अकॉर्डिंग विद द रेरा, मतलब पीयर रिव्यू जैसा हो गया है। पीयर रिव्यू ऑडिट होती है ना सीए की, ये वैसा ही है कि कोई डिस्क्रिपेंसी आई है क्या, सर्टिफिकेट इश्यू की है नहीं की है, सो वो हमको रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर वो है तो हमारे को वो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द प्रोफेशनल एंड इश्यूएंस ऑफ द सर्टिफिकेट।
एंड इफ एनी अदर इंफॉर्मेशन प्लीज स्पेसिफाई एनी अदर थिंग्स विच आर नॉट कवर्ड अबव। तो जो भी आपको वर्किंग नोट वगैरह यहाँ पे देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। So I think this is the from my side because we had some little bit little bit time, so मैंने इसको short में cover किया है। चिंतन जी from my side अगर किसी को कोई क्वेश्चन आंसर है या कोई रेरा से रिलेटेड कहीं कोई कंफ्यूजन है रूटीन प्रैक्टिस में, तो I can take that point and I can explain. Any member have any question answer? मुझे तो है ही सर, but सर ये जो अगर वो 7 दिन से डिले हो जाता है या क्वार्टरली रिटर्न भरने में, मान लो कि वो 7 तारीख चला जाता है मतलब, तो फिर जो कोई भी पेनल्टी है तो उसमें फिर कोई वेवर के कोई चांसेस है या वो 2000 वाला सीधा 10,000 हो जाता है? तो फिर वो 10,000 वो ऑटो मोड में, फिर उसमें कोई वेवर कोई टेक्निकल ग्राउंड देने या ऐसा कुछ कोई स्कोप नहीं रहता है ज्यादातर? वो डिपेंड करता है सर, फिर इंडिविजुअल केस टू केस, पर स्टैंडर्ड चीज तो ये है कि 10,000 रुपया लग जाता है। ओके, और फिर वो 25,000 कब हो जाता है सर? प्रैक्टिकली नो आइडिया 25,000 कब हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। वो तो क्या होता है, सुओ मोटो केस होता है ना, जब आप रेगुलर नॉन कंप्लायंस करते हैं। 25,000 वो कोई फिक्स नहीं है सर, रेरा के हिसाब से तो 10,000 का चालान है। अगर आप एक लॉन्ग टाइम तक उसको पेंडिंग रखते हैं तो रेरा अथॉरिटी सुओ मोटो एक्शन लेती है। सुओ मोटो एक्शन लेने के बाद नोटिस भेजती है प्रमोटर को, उसकी हियरिंग होती है और फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द प्रमोटर वो पेनल्टी इंपोज करते हैं, जो कि मिनिमम 25,000 है। किसी केस में वो 50 भी है, किसी केस में 1 लाख रुपीज भी पेनल्टी इंपोज हुई है, किसी के केस में मोर देन। सो 25,000 इज नॉट द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो है वो 10,000 रुपीज ही है। 25,000 रुपए तो जब बाद में सुओ मोटो केस वो करते हैं और उसका जो एडजुडिकेशन होता है उस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं। ओके सर। और सर एक्सटेंशन के लिए फाइल करना है तो बाय व्हाट टाइम इट हैज टू बी फाइल्ड, लाइक ऐसा बोलते हैं बिफोर 3 मंथ्स आपको करना पड़ता है, बट प्रैक्टिकली दे कंसीडर, बीच में एक सर्कुलर भी आया था 45 नंबर और समथिंग, और ऐसा है कि कोई भी एक्सटेंशन की अगर एप्लीकेशन करनी है, सो जो आपका रेरा रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाला है तो उसके 3 महीने पहले आपको एप्लीकेशन डालनी होती है। ऐसा रूल सर्कुलर में लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकली बहुत सी बार बाद में भी डालते हैं। रेरा अथॉरिटी इज फ्लेक्सिबल, सो दे एक्सेप्ट इट आल्सो। मतलब even after that registration has expired and if it's filed for extension then they also consider it? Depend on case to case, because sir ultimately object तो प्रमोटर का क्या है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। रेरा अथॉरिटी भी यही चाहती है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। अगर हम उसके लीगल कंसिक्वेंसेस देखें, अगर सपोज नहीं दिया एक्सटेंशन तो प्रोजेक्ट कौन कंप्लीट करेगा, रेरा अथॉरिटी या मेंबर्स? So sir, if at all in some case like registration has been obtained, now for any reason the project is not working out and there is no commercially there is no selling that is happening, sir. So and the project is not yet, let's say, completed, but it's on the verge of completion, but and it's like a good amount of time has been passed, or let's say even the defined time period is about to end or it has came to an end. So अभी फिर उसको एक्सटेंशन फाइल करना ही पड़ेगा या फिर he is now of the opinion कि यार भाई अपना कुछ बिक सके ऐसा लगता नहीं है, so he doesn't want to continue under RERA. So what can be done? रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है, रेरा जब तक आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको पूरा प्रोजेक्ट सेल हो जाना चाहिए। रेरा आने का पर्पज क्या है, आप प्रोजेक्ट को एक टाइमलाइन पे कंप्लीट कर दो। तो सपोज आपने 3 साल आपने कोई प्रोजेक्ट का टाइमलाइन डिसाइड किया है, 3 साल में आपने कंप्लीट कर दिया, बीयू आ गया। अब बिका नहीं बिका उससे रेरा को नहीं मतलब है, क्योंकि जब जो कस्टमर आएगा उसको रेडी पोजीशन मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है रेरा का कि भाई वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना टाइम पे और विद एवरीथिंग फैसिलिटी जो आपने दी है, राइट। तो सेल नहीं हुआ इसका मतलब एक्सटेंशन लेना ऐसा नहीं है सर। एक्सटेंशन किस लिए लिया जाता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, सेल करने के लिए नहीं। आई थिंक आपका क्वेश्चन यही था कि कोई सेल नहीं हुआ तो, करेक्ट?
नहीं वो तो सही है। अभी मान लो कि प्रोजेक्ट कंप्लीट भी उसको ऐसा है कि अभी कंप्लीट भी नहीं करना, सारा पड़ा रहने दो, अभी अपन देखेंगे 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, अभी जब अभी तो बुकिंग आ नहीं रहे, पैसा आ नहीं रहा है, जमीन लैंड अपना खुद का है, आधा प्रोजेक्ट बना के, लाइक अपने अभी देखते हैं ना कभी कभार वो रोड साइड पे होते हैं प्रोजेक्ट के, वो आधे मतलब वो कुछ उसमें आगे प्रोग्रेस भी नहीं होता, डिमोलिश भी नहीं होता, तो उस केस में सर फिर रेरा कर उसको रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन करवाना ही रहता पड़ेगा जब तक वो व्यू वगैरह ना आ जाए तब तक सर। फिर ये बहुत स्पेसिफिक केस है। अच्छा, इट इज नो सच काइंड ऑफ केसेज इज कम। ज्यादा से ज्यादा आप एक्सटेंशन लो, बुकिंग अगर 0 है तो आप जाके बोल सकते हैं, क्योंकि परमिशन जो होता है प्रोजेक्ट का, अगर आप कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देखते हैं तो उसमें भी एक टाइम लिमिट होता है कि वो प्रोजेक्ट को आपको इतने टाइम में कंप्लीट करना पड़ता है, तो फिर उसके बाद तो आपको अप्रूवल अथॉरिटी सब लेने जाना पड़ेगा। तो it is not a simple case, it is a difficult, we have to see lot of other things also, कि भाई लोकल म्युनिसिपैलिटी लोग क्या बोलता है, उसके हिसाब से क्या प्रोविजन है, फिर रेरा में जाके हम क्या बोलेंगे, फिर रेरा में रिक्वेस्ट करा गया तो रेरा रजिस्ट्रेशन जो है उसको कैंसिल कराएं, फिर हम बोलेंगे जब हमारा प्रोजेक्ट लाइव होगा we will come again for the registration, we will comply everything. So it is like some special case which we can read the documents and then we can decide. अगर आपको एक्सटेंशन लेना तो आप लेते जाइए। एक्सटेंशन में केस में क्या होता है, 1 साल से ज्यादा एक्सटेंशन मिलता नहीं है, राइट? उसके बाद क्या करेंगे? अगर बुकिंग है, मेंबर्स की परमिशन, फिर से वो तो एक साल तो अपन ले सकते हैं, मतलब एवरी ईयर वी हैव टू फाइल द एक्सटेंशन फॉर्म एंड एफिडेविट, एक बार ही मिलता है। अच्छा, ओके, एक्सटेंशन 1 साल का ही मिलता है। अच्छा, ओके। तो वो तो क्या, फिर आपको प्रोजेक्ट ही अमेंड कर, मतलब प्रोजेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा के देन यू हैव टू गिव सम एफिडेविट, डिस्क्लोजर, व्हाटएवर, तो वो it cannot be answered in a general way. Okay, that's right. Yes, any other? ओके, और सर समझ गया। तो ये तो, और सर कोई ऐसे जैसे मॉल्स वगैरह रहते हैं कि वेर इन देयर इंटेंशन इज नॉट टू सेल आउट, their intention is just to let out. At this point of time they are making 50 units, let's say, but none of their intention is to sell it. Their intention is just to let out. So in that case also this thing is required, sir. RERA is no RERA is required, right, sir, for letting out? Yes, no registration required. Okay, and in the earlier question that I asked, let's say the project is of, let's say, some commercial building, and now the promoter intends to change it to, let's say, some education institution, or let's say some hospital or whatever, like other than something selling out. अप्रूवल आएगा ना सर कंपेटेंट अथॉरिटी से। समझ गया। तो so then after he can go and change the, then he can cancel the RERA. सर ये जनरल वे में नहीं दिए जा सकते, आप समझिए। समझ गया। Specific kind, so we have to see other angles also. Okay. चिंतन जी के पास रेरा का सबसे ज्यादा काम है, इसीलिए चिंतन जी ने हर टाइप की नहीं ऐसा नहीं है, काम तो सर कुछ जैसे है सब, बट ये कुछ ना कुछ सवाल क्लाइंट ऐसे सब आ जाते हैं कि जो ऐसे अनवायबल प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो फिर सर आप उससे पैसा नहीं लेते ना, इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पैसा लेना चालू कर दोगे तो आगे यू आर राइट, बट उसके लिए क्या है, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव दैट एज ऑफ लाइक RERA एक्ट, लाइक या इतना नॉलेज नहीं है। सो मतलब हम भी कभी कभार, बट देन डेफिनेटली योर फ्रेंड्स लाइक यू आर देयर, and we can take even professionally or help them, and we can refer them to you, sir. So even it could be like win-win for all of us, and like even client will also be happy that he got some really good advice and professional advice. काम तो सब मेरे it happened with us in one of the 2 case. Our friends have suggested कि ये project के लिए RERA applicable होगा नहीं होगा, so we told that we will give you an opinion and we will charge something for that. So केवल क्या होता है ना, कहीं फिर वो ओपिनियन किसी को दिखा के उसके लिए भी बेनिफिट रहता है, करेक्ट? सो दैट यू आर राइट। काम तो सब RERA में सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से रमेश भाई के पास होगा, रमेश पुजारा जी के पास। रमेश जी, आपके कोई क्वेश्चन है सर? एंड दूसरे हमारे पंकज भाई है, he himself is a builder and he has just recently joined, so it came to my mind. He is having a good amount of projects here in Gandhinagar, so commercial and residential and all of them. चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज जी।
by profession he is a chartered accountant, but he is more of a developer. वो अपने जैसे वो 5-25 हजार की फी में उनको सर अभी इंटरेस्ट नहीं रहा, सीधा करोड़ों में ही बातें चलती है सर। अच्छा है सर, तो फिर तो पंकज जी खुद ही अपना काम कर लेते होंगे, ना चिंता पड़ेगी ना महादेव बिरला की। नहीं, बट रेरा में तो सर आई डोंट नो लाइक वो टू हु इज कंसल्टिंग, बट एक्सपर्ट की जरूरत तो रहती है। रेरा इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी सर। Sir, any questions? Then anyone having any question? पंकज भाई के सवाल તમારા? ના ચિંતન ભાઈ બધું ઓકે, જરૂર પડશે તો કોન્ટેક્ટ કરી લે ડાયરેક્ટ. શ્યોર સર, કહેજો, તમને નંબર આપીશ મહાદેવ ભાઈ. Sure, બરાબર છે, થેન્ક યુ સર. બરાબર છે, હવે કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો કઈ આઈ ગેસ નું રમેશ ભાઈ આપને કઈ સવાલ? my details are there. Anybody can contact on email and mobile. ઓકે ઓકે, ભલે. રોમિલ ભાઈ. Thank you, sir. On behalf of Gandhinagar CP Study Circle, I thanks to CM Madhav Bilas and CM Nipun Singhvi sir for such a wonderful detailed analysis and RERA compliance and litigation. And we will arrange in physical mode seminar in future. Thank you, sir. Thank you. Thank you for patience. Thank you, sir. It was really wonderful. I am not sure what like many members would have gained a lot, but I personally too I have gained a lot, sir, out of your knowledge, out of your this Thank you, sir. knowledge and answers. Thank you, sir. Thank you. Thanks you, for sir. coming, sir, and keep on coming. Thank you, sir.